of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's very hot webinar on issues in clause 44 recently introduced and 30C and so many issues. We will take only question answer on section 144 AD and 44 ADA. On this subject, our very learned brother Rajiv Jain ji with us. I welcome you, sir. I also welcome Atmaram Saria ji, Ashok Sharma ji, and all the attendee on behalf of our study circle. To briefly introduce our today's speaker, CA Rajiv Jain ji, BCom Honors, Law Graduate, Chartered Accountant, qualified in 1991. He is expert in direct taxes, pleading income tax appeal at Tribunal, consultancy in the field of income tax, finance, management, and audit. He was adjudged as award as best speaker of NIRC by NIRC of ICI. He delivered hundreds of informative lecture on finance bill, income tax, including appearance on televisions. He also authored various articles published in various professional magazines and newspapers. He is a member of ITAT Bar Association, New Delhi. He is a senior partner in Messrs. SSAR and Associate, having offices on Sari Road, New Delhi. And besides this, he is also master in appeal matter. So I would request him, please, if time allow, and moreover he allow that, so please throw some light on the notices issued 148 and 148A, whatever it, sir, it is up to you. So with this one, I also welcome you once again, and over to you. Thank you, Rajesh Bhai. My learned two panelists today, CA Shri Atmaram Saria ji, Shri Ashok Sharma ji, and convener of Pusa Road CP Study Circle, my brother Rajesh Agarwal ji, fellow professional colleagues who have joined this program on Zoom, ladies and gentlemen. First of all, I convey my thanks once again to Rajesh Agarwal ji for inviting me and giving me another opportunity to come here amongst all of you. और जो आज का इन्होंने टॉपिक लिया है टैक्स ऑडिट, तो सही मायने में as far as we the chartered accountants are concerned, we are all expert in conducting tax audit. और मैं एक्चुअली में टैक्स ऑडिट पर इतने सेमिनार में बोल चुका हूँ. Sometimes whenever I receive another invitation to speak on tax audit, तो I feel nervous कि मेरे पास whatever little knowledge I had at my command, I have already shared and parted with my professional colleagues. और टैक्स ऑडिट में अब इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं, तो देयर इज नथिंग न्यू, और बारिंग फ्यू चेंजेस कि जो नए आते हैं तो उसको हम अपने आप की अपनी नॉलेज को अपडेट कर दें. तो मैं राजेश भाई से यही बोल रहा था कि राजेश भाई टैक्स ऑडिट में ज़्यादा कुछ सुनने पढ़ने को तो कुछ है नहीं. तो राजेश भाई बोले सर नॉलेज ब्रशअप कर लेते हैं. नॉलेज ब्रशअप हो जाएगी तो अब टैक्स ऑडिट आ गया है, सीजन आ गया है, और कई बार मेंबर्स की कुछ फाइनर क्वेरीज होती हैं, और कई बार हमारे यंग प्रोफेशनल्स होते हैं या जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं उनको भी कई बार फाइनल पॉइंट्स पे कुछ क्लैरिफिकेशंस की आवश्यकता होती है. तो दैट इज व्हाई आई शुड कंडक्ट दिस सेमिनार. और ऑलरेडी आप एक इतनी सक्सेसफुल सेमिनार कर चुके हो टैक्स ऑडिट की, बट स्टिल अश्वनी कटपालिया जी आए हैं. बहुत बहुत स्वागत है अश्वनी जी. और भी जितने मेंबर पैनल में आना चाहें सबको जोड़ लो. राजेश मोस्ट वेलकम सर. जो भी हैंड रेज करेगा हाँ मैं उसको ले लूंगा पैनलिस्ट में. और मेरा आज के सेमिनार में पर्पस ये है कि व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव इन योर माइंड, जो मेरे पास कुछ जो नई चीज है जो इस साल आपको देने के लिए, वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा. और उसके अलावा कोई भी आपको अगर क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, कोई भी आपको थ्रू आउट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, थ्रू आउट जो भी आपका क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन आंसर में डाल दीजिए, राजेश भाई को बोल दीजिए, पैनल पे आके पूछ लीजिए, व्हाटएवर वे यू वांट. तो आज की इस अपॉर्चुनिटी को पूरा यूटिलाइज करेंगे. तो इनिशियली मैं तो कह रहा था राजेश भाई ज़्यादा कुछ सामान तो है नहीं टैक्स ऑडिट में बोलने के लिए. बोले सर जब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो बात लंबी हो जाती है. तो चलिए थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्चुअल बात से, कॉन्सेप्ट को समझ के बात शुरू करते हैं. आई वेलकम अमित अग्रवाल जी, और राकेश गुलाटी जी ने भी ऑल्सो ज्वाइंड ऑन द पैनल. तो थोड़ी सी बेसिक बातों को समझ लेते हैं जिससे हमारे को टैक्स ऑडिट को समझने में आसानी रहेगी. भाई भी कंडक्ट टैक्स ऑडिट करते क्यों है, ठीक है, टैक्स ऑडिट का स्कोप क्या है, हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या है. तो क्या होगा कि यदि हमारी बाउंड्रीज निश्चित होंगी तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्फीयर ऑफ आवर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज प्लेस्ड अपॉन अस.
तो पहली बात तो क्या है कि टैक्स ऑडिट इज फॉर द पर्पस ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए हम टैक्स ऑडिट करते हैं। टैक्स ऑडिट का जो पर्पस है वो डुअल पर्पस है, सर्टिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एसएससी, whether the balance sheet and profit and loss account gives a true and fair view or not. And the second purpose is that for the purpose of computation of taxable income, the assessing officer requires certain information. जो सेक्शन के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस से जो मेरा प्रॉफिट आया, उससे जब मैं टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करूंगा, एसएससी की टोटल इनकम कंप्यूट करूंगा, तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस का इम्पैक्ट लेने के लिए असेसिंग ऑफिसर रिक्वायर सर्टेन इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन निकालने का काम जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को डेलीगेट कर दिया कि आप फॉर्म नंबर 3CD में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप सप्लाई कर दीजिए। ठीक है सर। तो टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB का डुअल ऑब्जेक्ट है, सर्टिफिकेशन, ओपिनियन ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एसएससी, and the second is information in form number 3CD which is relevant for computation of income. जिन एसएससीज का ऑडिट किसी दूसरे लॉ में होता है, जहां बैलेंस शीट और अकाउंट्स और ट्रू एंड फेयर व्यू आपका दूसरे लॉ में सर्टिफाई हो गया, तो इनकम टैक्स एक्ट में 44AB में यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू सप्लाई इंफॉर्मेशन इन फॉर्म नंबर 3CD जो आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के लिए रेलेवेंट है। अब डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, असेसिंग ऑफिसर के बिहाफ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंडक्ट्स वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एसएससी और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के उनकी बुक्स के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया, और जो इंफॉर्मेशन देनी है वो हमने देनी है फॉर्म नंबर 3CD में। अब बात यह है कि ये जो इंफॉर्मेशन हमने सप्लाई की टू द असेसिंग ऑफिसर, वेदर असेसिंग ऑफिसर इज बाउंड टू फॉलो दैट इंफॉर्मेशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वेदर द एसएससी इज बाउंड बाय अवर ओपिनियन, दूसरा क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन अराइज हो गए कि हमने एक इंफॉर्मेशन सप्लाई कर दी। अब क्या है कि जब हम ट्रू एंड फेयर व्यू का ओपिनियन देते हैं, वो हमारा अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, उसकी जो क्वालिफिकेशन देते हैं वो हमारी इंडिपेंडेंट क्वालिफिकेशन, उसमें एसएससी का भी से नहीं है और असेसिंग ऑफिसर का भी से नहीं है। वेदर एसएससी कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, द आंसर इज यस। वेदर असेसिंग ऑफिसर कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, द आंसर इज यस। इन द सेम मैनर, जो हम इंफॉर्मेशन फॉर्म नंबर 3CD में सप्लाई कर रहे हैं, इट इज सपोज टू बी ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड करेक्ट यानी कि हम उसकी करेक्टनेस को सर्टिफाई करते हैं। अब जब हम इंफॉर्मेशन कंपाइल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय प्रोवाइडेड टू अस बाय द एसएससी, उस इंफॉर्मेशन को हम वेरीफाई करते हैं एंड वी सर्टिफाई दैट इंफॉर्मेशन टू बी ट्रू एंड करेक्ट। वहां पर भी कई बार कोई लीगल इंटरप्रिटेशन का इश्यू हो सकता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकती है, असेसिंग ऑफिसर की इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकती है, और एसएससी की इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकती है। इन दैट केस वट एवर इंटरप्रिटेशन इज आवर्स, वो हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अपने जो हमारा रिलायंस है, हमारी जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें एक्सप्रेस कर देनी है। इफ असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू टेक ए डिफरेंट व्यू, ही कैन ऑलवेज टेक। इफ एसएससी वांट्स टू टेक ए डिफरेंट व्यू, ही कैन ऑलवेज टेक। हमने अपनी बुक्स के, हमने इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपनी रिपोर्ट में कुछ लिखा है, एसएससी उसकी डिसअलाउंस नहीं करना चाहता, तो अपनी रिटर्न में जाके वो डिसअलाउंस ना करे। इज नॉट बाउंड बाय अवर रिपोर्ट। ठीक है, ये बात एक सब, उसको बाद में 139(9) का नोटिस आएगा कि आपकी डिस्क्रिपेंसी है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर और इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर, दैट इज सेपरेट थिंग। उसको कैसे डील करना है वो एक अलग बात है। लेकिन बात यह है कि वट एवर ओपिनियन वी हैव एक्सप्रेस्ड और वट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव प्रोवाइड, असेसिंग ऑफिसर के पास लॉ में पावर है कि वो अपना व्यू फ्रेम कर सके, और एसएससी के पास भी अपना राइट है कि वो उससे डाइवर्ज करके अपना एक डिफरेंट स्टैंड ले सके। राइट, ये एक बात समझ लीजिए। दूसरी बात मैंने कहा कि हमें अपना स्कोप ऑफ ऑडिट वो हमें जरूर डिफाइन करना चाहिए कि वट एवर रिपोर्टिंग वी आर मेकिंग इन फॉर्म नंबर 3CD एंड वेयर एवर वी आर एक्सप्रेसिंग अवर ओपिनियन, तो जो हमारा ओपिनियन है उसकी बाउंड्रीज क्या है, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, वो हमारी ऑडिट रिपोर्ट में डिफाइन होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आई एम ऑडिटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। एक आदमी की 2 प्रोप्राइटरशिप कंसर्न भी हो सकती है, 3 प्रोप्राइटरशिप कंसर्न भी हो सकती है। अब उसने मुझसे अगर एक फर्म का ऑडिट कराया और मैंने उस फर्म का ऑडिट किया, एंड माय स्कोप ऑफ वर्क इज कन्फाइंड टू द बाउंड्रीज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, तो मुझे अपनी रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करते समय जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इट शुड ऑलवेज कन्फाइन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दैट प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनली।
उसके बियॉन्ड अगर कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास आ भी जाती है तो वो मुझे सप्लाई नहीं करनी। तो अपने स्कोप ऑफ वर्क का आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। लास्ट ईयर का टैक्स ऑडिट अभी हमारा खत्म हुआ था, असेसमेंट ईयर 22-23 का टैक्स ऑडिट स्टार्ट हो गया। अब इस साल नया क्या है, ये बात समझते हैं। इस साल नया क्या है, फॉर्म सेम है, ऑडिट रिपोर्ट सेम है, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज। फॉर्म नंबर 3CD में लास्ट ईयर में 2 क्लॉज थे जिनको 31 मार्च 2022 तक सस्पेंड कर दिया था। 31 मार्च 2022 तक जो ऑडिट रिपोर्ट फाइल हुई तब तक वो क्लॉजेज एप्लीकेबल नहीं थे। क्लॉज नंबर 30C एंड क्लॉज नंबर 44, ये दोनों क्लॉजेस की रिपोर्टिंग इस साल पहली बार। ठीक है, तो इन दोनों क्लॉजेस को डिटेल में समझेंगे कि इसकी रिपोर्टिंग हमें कैसे करनी है। राइट, अब आगे चलते हैं कि इस साल और क्या नया बदलाव है। कोलकाता ट्राइब्यूनल ने एक जजमेंट दिया था, सागर दत्ता और अमल गांगुली ये दोनों PwC के पार्टनर थे, सीए फर्म के, और उनको जो पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट आया दैट वाज इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख। तो ट्राइब्यूनल ने कहा कि साहब ये जो आपको पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट आया है, दिस इज योर बिजनेस और दिस इज योर रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन, और जो पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटीज का नेचर है वही नेचर पार्टनर के हैंड में उस इनकम का होगा। तो ट्राइब्यूनल ने कहा कि इन दैट मैटर ये जो दोनों पार्टनर्स हैं, जब आपका इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन 50 लाख रुपए क्रॉस कर गया, देन यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44A। बात समझ में आ गई सर? इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? अब इसका कॉन्सिक्वेंस कहा कि ट्राइब्यूनल ने कहा कि अगर ये जो पार्टनर है और इस पार्टनर को इंटरेस्ट मिला और रेम्यूनरेशन मिला फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म विच इज एंगेज्ड इन प्रोफेशनल एक्टिविटी, तो क्या कहा कि पार्टनर के हाथ में वो जो इनकम होगी दैट विल बी इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल इनकम। ठीक है, अब मेरे को रास्ता मिल गया। अब साहब अगर ये मेरी प्रोफेशनल इनकम है तो आप मुझे 44 ADA में इसको डिक्लेयर करने के लिए अलाउ कर दो। अब जो इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन है, अब इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन दिखाने की क्या जरूरत है? मैं तो 44 ADA में जाऊंगा, 50% दिखाऊंगा और बात बड़ी आसान हो गई। इन द सेम मैनर 44 AD वाला अगर कोई बिजनेस इनकम वाला है, बिजनेस इनकम वाले को अगर इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन आ गया पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आया कि जो इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन आ रहा है, वेदर आई कैन डिक्लेयर दैट इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन एज ग्रॉस रिसीट अंडर सेक्शन 44 AD और मैं 8% दूं और फुर्सत हो जाऊं। कैन आई डू इट? द आंसर इज नो। कॉमन सेंस से हमें माइंड में बात समझ में नहीं आती कि अगर इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन आया तो मैं 50% प्रोफेशनल इनकम दिखा दूं, और अगर मेरे को बिजनेस से आया इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन तो मैं 8% दिखा के 44 AD में छूट जाऊं। ठीक है, बात समझ में नहीं आई। तो इसका मतलब ये जो इंटरप्रिटेशन थी ट्राइब्यूनल की, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। ठीक है सर, ये जो ट्राइब्यूनल की इंटरप्रिटेशन थी ये कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। फिर एक जजमेंट आया, आनंद कुमार वर्सेस ACIT, ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था 430 ITR 391। इस जजमेंट में उसने कहा कि भाई ये जो इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन आता है पार्टनरशिप फर्म से, इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 44 AD। ये 44 AD का कंपोनेंट नहीं है। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज टर्नओवर अंडर सेक्शन 44 AD, और इसको आप 8% डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है सर, अब हमारे लिए कंफ्यूजन अराइज हो गया जब हमने लास्ट ईयर का लेक्चर सुना, जब हम ट्राइब्यूनल को फॉलो कर रहे थे, कलकत्ता ट्राइब्यूनल को फॉलो कर रहे थे कि आपको इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन आ रहा है, अगर बिजनेस एंटिटी से आ रहा है, आपका 1 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर गया, देन यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। प्रोफेशनल फर्म से आ रहा है, 50 लाख एक्सीड कर गया, देन यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। अब जब 44 AD की लैंग्वेज को हम समझेंगे, व्हाट वी विल फाइंड, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, कैरिंग ऑन प्रोफेशन। अब क्या पार्टनर के केस में वी कैन से कि पार्टनरशिप फर्म के केस में तो वी कैन से दैट पार्टनरशिप फर्म इज कैरिंग ऑन प्रोफेशन, पार्टनरशिप फर्म इज कैरिंग ऑन बिजनेस। इफ ए पार्टनर इज हैविंग इंटरेस्ट इनकम और रेम्यूनरेशन फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म, कैन इट बी सेड दैट पार्टनरशिप द पार्टनर इज कैरिंग ऑन बिजनेस, द पार्टनर इज कैरिंग ऑन प्रोफेशन? तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। बट टू बेनिफिट ऑफ ऑल, अब बंबई हाई कोर्ट ने
ये लेटेस्ट जजमेंट आया है 9 मार्च 2022 को। अब इश्यू को सेटल कर दिया। अब इश्यू को उन्होंने सेटल कर दिया कि जो पार्टनर है, और पार्टनर को जो इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन आता है पार्टनरशिप फर्म से, दो इट इज असेस्ड एज बिजनेस इनकम, लेकिन 44A के लिए टर्नओवर की काउंट नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर हम पार्टनर को ये नहीं मानेंगे दैट द पार्टनर इज कैरिंग ऑन बिजनेस और पार्टनर इज कैरिंग ऑन प्रोफेशनल एक्टिविटी, राइट। तो ये जो जजमेंट है जोराबियन ईरानी वर्सेस पीसीआईटी, जोराबियन ईरानी वर्सेस पीसीआईटी, 9 मार्च 2022 का जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है सर, अब ये बड़ा क्लियर हो गया कि पार्टनर के पास अगर इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन आता है, ठीक है सर, तो वो हमारा सेपरेट आइटम है। इट विल नॉट बी काउंटेड एज टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट। ठीक है सर। और जो चेन्नई हाई कोर्ट का जजमेंट था, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था आनंद कुमार वाला, उसको एक तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। अब ये क्लियर हो गया, प्रिंसिपल सेटल हो गया कि इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन अगर पार्टनर को आता है उस पर आप 44AD में भी नहीं जा सकते और 44ADA में भी नहीं जा सकते। क्लियर सर। और उसको ऑडिट के लिए वो जो इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन है और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया वो काउंट नहीं होगा। ठीक है सर। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम अपनी बिल्कुल क्लियर करके चले पार्टनरशिप फर्म को लेके। और इससे रिलेटेड कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो अभी हैंड रेस करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। राजेश जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हो, आप भी इक्वली लर्नेड हैं, और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। मेरे को ये 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लो इसमें सर कोई और इससे रिलेटेड तो नहीं है। नहीं, इससे रिलेटेड कुछ नहीं है सर। वो कह रहे हैं वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस ठीक नहीं आ रही है सर? नहीं नहीं, अब तो ठीक है, वो पहले की बात होगी। अच्छा अच्छा वो मैंने डिलीट कर दी है। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। तो ये पार्टनरशिप का इश्यू क्लियर हो गया। जी सर, जी सर। अब अशोक शर्मा जी ने हैंड रेस किया है, देखिए अशोक शर्मा जी को, अशोक शर्मा जी को अनम्यूट करना चाहिए। आप नहीं, आप अनम्यूट करो सर, शर्मा जी आप अनम्यूट करो। हाँ जी सर। सर, आपने शुरू में बताया था कि एसएससी डिफरेंट व्यू ले सकता है वो रिटर्न में फाइल करके, लेकिन वो 3CD में भी, बिकॉज 3CD इज टू बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द एसएससी, तो 3CD में ही डिफरेंट व्यू ले ले। देन आप ऑडिटर को उस पर कमेंट करना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो 3CD की इंफॉर्मेशन है दैट हैज टू बी सप्लाइड बाय द एसएससी, और जो रिपोर्टिंग है वो हमारी है, रिपोर्टिंग वो एसएससी की नहीं है। उस इंफॉर्मेशन को हम एग्जामिन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और फिर अपने ओपिनियन के हिसाब से अपनी रिपोर्ट में हम उस इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं, राइट। तो जो एसएससी ने हमें इंफॉर्मेशन सप्लाई की बेस्ड अपॉन अवर लीगल इंटरप्रिटेशन, वो रिपोर्टिंग पे एसएससी का कंट्रोल नहीं है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम 3CD की रिपोर्टिंग करते हैं उसके ऊपर एसएससी का कंट्रोल नहीं है, वो हमारी खुद की रिपोर्टिंग है। तो इन्फो वो एसएससी का डिफरेंट व्यू हो सकता है सर, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है शर्मा जी। तो आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन 3CD में फाइल कर दी है, एसएससी ने उसको अप्रूव भी कर दिया है आपके फॉर्म 3CD को, तो उसके बावजूद भी अगर वो रिटर्न में जाके अपना डिफरेंट व्यू लेना चाहे तो इट इज ऑलवेज ओपन फॉर द एसएससी टू टेक ए डिफरेंट व्यू, इसमें कोई डाउट। करेक्ट। चलिए, एक बहुत से लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर ये 50 लाख की लिमिट कब लगेगी, 1 करोड़ की लिमिट कब लगेगी, क्या चीज प्रोफेशन है और क्या चीज हमारी बिजनेस है। तो एक जो सिंपल डिफरेंशिएशन है, प्रोफेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी आवश्यक है। जो प्रोफेशन की डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 236, वो कहता है प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। वोकेशन क्या है? वोकेशन इज अ लाइफ स्टाइल। एक आदमी है जो पैदाइशी सिंगर है, एक आदमी है जो पैदाइशी आर्टिस्ट है ना, तो उसका एक अपना टैलेंट है, अपना उसका इंटेलेक्चुअल टैलेंट है, अपनी उसकी इनबिल्ट क्वालिटी है, राइट। तो प्रोफेशन और बिजनेस में जो बेसिक डिफरेंस है, जहां इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट ज्यादा है वो प्रोफेशन है, जहां लेबर कंपोनेंट ज्यादा है वो बिजनेस है, जहां ट्रांजेक्शन कंपोनेंट ज्यादा है वो बिजनेस है। अब बिजनेस करने के लिए भी आपको इंटेलेक्चुअल तो चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसका पोर्शन ज्यादा है। अगर आपका इंटेलेक्चुअल पोर्शन ज्यादा है इट विल बिकम अ प्रोफेशन। अगर आपका इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, बिजनेस ट्रांजेक्शन और लेबर कंपोनेंट ज्यादा है देन इट विल बिकम बिजनेस। ये इसका सीधा फंडा है। उसके लिए किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है। अब जो रूल 6F में जो नो प्रोफेशन प्रिस्क्राइब किया गया, प्रोफेशन सिर्फ वहीं तक कन्फाइन नहीं होते। ठीक है सर।
हर केस में यू हैव टू अप्लाई योर ओन माइंड, और उस माइंड को अप्लाई करके आप डिटरमिन कीजिए वेदर इट इज ए प्रोफेशन और इट इज ए बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, आपको अपना स्टैंड लेना है। अभी जब हम 44 AD की बात कर रहे थे, तो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कि साहब माय एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग आउट प्रॉपर्टीज। रेंट पे देता है प्रॉपर्टीज को। जब मैं प्रॉपर्टीज को रेंट पे देता हूँ, तो क्या मैं इसको 44 AD में दिखा सकता हूँ? अगर मेरी रिसीट 2 करोड़ रुपए से कम है, रेंटल रिसीट्स, तो और एंड आई एम डूइंग माय रेंटल एक्टिविटी एज माय बिजनेस, और मेरे मेमोरेंडम भी मेरी जो पार्टनरशिप डीड कहें या जो मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्ट है वो भी उसको सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर यह मामला बड़ा डेलिकेट है। डेलिकेट इसलिए है क्योंकि डिफरेंट हाई कोर्ट्स एंड एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट्स इसके डिफरेंट बेसिस हैं, और जनरली जो एनी इनकम फ्रॉम लैंड और बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी देयर टू, चाहे वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है या वो आपका इन्वेस्टमेंट है, इट इज ऑलवेज टैक्स एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर, उसको जब आप बिजनेस में लेके जाते हो तो आपको एक अलग से उसको प्रूव करना पड़ता है दैट यू आर, उसमें एक एक्टिव पोजीशन और पैसिव पोजीशन, ये कॉन्सेप्ट है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अंसल हाउसिंग के जजमेंट में ले डाउन किया है। तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट इशू, और आमतौर पे रेंटल इनकम को एज ए बिजनेस एक्टिविटी दिखाना ऑलवेज यू आर टेकिंग ए टफ वॉक, टफ डिसीजन। तो उसको बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिए, और ब्लैंकेट ये कहना बड़ा मुश्किल काम है कि आप रेंटल इनकम को जाके 44 AD में टर्नओवर मान के और 8% इनकम दिखा दीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आपका केस स्क्रूटनी में नहीं आया, तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग। लेकिन अगर केस स्क्रूटनी में आया तो डेफिनेटली you may have some problems and some litigation coming to your door. अब हमें ये डिसाइड करना कि किस केस में हमें टैक्स ऑडिट करना है या किस केस में हमें टैक्स ऑडिट नहीं करना, ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां पर हमने डिसाइड किया, अब क्या है कि जो सेक्शन की लैंग्वेज है, अब हमारे पास इतने सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। आप 2 करोड़ तक 44 AD में जा सकते हैं। अगर आप 17-18 से बाद कभी आप 44 AD में नहीं गए तो आप 8% से भी कम में जाते हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, राइट। आपने 17-18 के बाद कभी 44 AD में चले गए, आपने 8% या 6% दिखा दिया, और उसके अगले 5 साल आप किसी साल 8% से 6% से कम दिखाया, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अब ये इतने सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल हो गए कि इतनी सारी ऑप्शन में इवन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कंफ्यूज्ड कि कब मेरी टर्नओवर 1 करोड़ की काउंट होगी, कब मेरी टर्नओवर 10 करोड़ की काउंट होगी। अब सपोज करिए कि यहाँ पर आपने जो इंटरप्रिटेशन बनाई अपनी बेस्ड अपॉन योर बेस्ट अवेलेबल नॉलेज टू यू, आपने एक ओपिनियन बना लिया कि मुझे इस केस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है सर, और आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी। अब सीपीसी का व्यू है कि आपके केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि आपने अपना व्यू पॉइंट बनाया कि टैक्स ऑडिट नहीं करना, टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। आपने बिना टैक्स ऑडिट किए ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दी, अब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी। अब सीपीसी आपसे कहता है कि नहीं सर, as per our understanding you are required to get your books of accounts audited and your return of income is defective। आपकी जो रिटर्न है सेक्शन 39(9) में, वो आप 139(9) में वो रिटर्न डिफेक्टिव है, तो वो आपको एक नोटिस देते हैं। आप अपने ओपिनियन पे स्टैंड रखते हैं, आप लिख देते हैं सर अब माय टर्नओवर इज आई हैव नेवर ऑप्टेड फॉर सेक्शन 44 AD, आई हैव नेवर ऑप्टेड फॉर 8% और 6% एंड आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू गेट माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। अब वो सीपीसी के लोग कितने लीगली कॉम्पिटेंट हैं और वो किस तरीके से सीपीसी की जब प्रोसेसिंग होती है, तो इन मैक्सिमम केसेस जब भी आपको 139(9) का नोटिस आएगा डिफेक्टिव रिटर्न के लिए कि आपने ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाई, तो आप ये मान के चलिए कि वो नेक्स्ट उसका आप जो मर्जी रिप्लाई फाइल करते हैं, उसका नेक्स्ट स्टेज ही होगी और रिटर्न विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड एज नॉन एस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। ये हर एक केस में ये कॉन्सिक्वेंस आपके पास हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा खड़ा हो गया कि अगर सपोज देखिए, दो सिचुएशन है। आई एम रिक्वायर्ड टू गेट माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करा ली और मैं अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करना भूल गया, सिचुएशन नंबर 1। दूसरी सिचुएशन हुई कि मैंने अपना टैक्स ऑडिट कराया ही नहीं,
बिकॉज मेरा ओपिनियन है कि टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन। अब पहले केस में मेरे पास अगर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा तो मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं उस डिफेक्ट को रिमूव करूंगा, टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट अपलोड कर दूंगा और उसके बाद मेरी रिटर्न जो है वो वैलिड हो जाएगी। जो सेकंड सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में तो मैंने टैक्स ऑडिट कराया ही नहीं। एक ऐसी भी सिचुएशन होती है कि पार्टनर्स में आपस में झगड़ा है, उन्होंने ऑडिट कराया ही नहीं, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं कराया। कैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिनाई देम टू देयर राइट टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न विदाउट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? तो फिर अगर वो ऐसा होगा कि अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं गई तो रिटर्न अगर इनवैलिड हो जाएगी, द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 271 कैपिटल बी पेनल्टी, फिर पेनल्टी तो मीनिंगलेस हो गई। गॉट माय पॉइंट? यानी कि अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं हुई और वो डिफेक्ट नहीं भी रिमूव हुआ, सो इन माय कंसीडर्ड व्यू द रिटर्न कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। आपका एक पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके पास, अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराया तो आप सेक्शन 271 कैपिटल बी की आप पेनल्टी लगा दीजिए। आप मेरी रिटर्न को नॉन एस नहीं कर सकते, आप मेरा रिफंड मुझे डिनाई नहीं कर सकते। गॉट माय पॉइंट? अगर मेरा लॉस का कैरी फॉरवर्ड है तो वो भी आप मुझे डिनाई नहीं कर सकते अगर मैंने टैक्स ऑडिट नहीं कराया तो। सो दिस इज द लॉ। लेकिन सीपीसी कर क्या रहा है एक्चुअली में? द मोमेंट आपको 139(9) का नोटिस आया और आपके पास अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं अपलोड की, देन योर रिटर्न विल बी डीम्ड एज इनवैलिड रिटर्न और आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। इट विल बी डीम्ड टू बी नॉन एस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। और अगर आपका रिटर्न फाइल करने का टाइम निकल गया, देन यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग थी सेक्शन 139(9) की, वो बड़ी क्लियर थी कि सेक्शन 139(9) का जो ऑर्डर है वो अपीलेबल ऑर्डर नहीं है। वो सेक्शन 246 कैपिटल ए को जब हम देखते हैं तो 139(9) में यदि आपकी कोई रिटर्न इनवैलिड हो गई, अब कोई छोटा एसएससी है, उसकी रिटर्न इनवैलिड हो गई, अब रिटर्न इनवैलिड होने के बाद व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी? वो करेगा क्या बेचारा? अब उसके पास दो ही ऑप्शन बचती थी, या तो सेक्शन 264 में पिटीशन जाके फाइल करे वो उसके पास, उसके बाद वो हाई कोर्ट जाए, या फिर वो सीधा हाई कोर्ट जाए। और हाई कोर्ट ने भी कई बार कंसिस्टेंटली इस तरह के ओपिनियन लिए कि अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं हुई तो देन रिटर्न विल बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव रिटर्न। ठीक है सर, वो रिटर्न आपकी इनवैलिड हो जाएगी। तो लेकिन थैंक गॉड एक गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड और एक रीसेंट जजमेंट आया है, आप नोट कर लीजिए। धीरे डीरे एंड कंपनी, DEERE डीरे, DEERE डीरे एंड कंपनी वर्सेस DCIT 2022 का लेटेस्ट जजमेंट है। 138 taxman.com 46 पुणे ट्राइब्यूनल का जजमेंट है। बहुत सुंदर जजमेंट है और इसने कहा कि जो पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपके पास इसीलिए, अगर आप रिटर्न इनवैलिड कर देंगे तो पीनल कॉन्सिक्वेंसेस विल बिकम मीनिंगलेस। तो अगर किसी का लॉस है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड अलाउ करना पड़ेगा, अगर किसी का रिफंड है तो आप उसकी रिटर्न को इनवैलिड करके उसके रिफंड को खा नहीं सकते। राइट? तो ये जो जजमेंट है, और इसने सबसे बड़ी खास बात ये की कि ये जो ऑर्डर है 139(9) का, दिस इज हेल्ड टू बी अपीलेबल अंडर सेक्शन 246 कैपिटल ए। इन्होंने 246 कैपिटल ए के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए को इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा है कि जहां वो कहते हैं एनी ऑर्डर अगेंस्ट द एसएससी वेयर एसएससी डिनाइज हिज लायबिलिटी, ठीक है सर, वो अपीलेबल ऑर्डर है। और ये जो जनरल फ्रेज है इसके अंदर सेक्शन 139(9) का ऑर्डर अपीलेबल हो जाएगा। राइट? तो अभी अपने को सेक्शन 139(9) की जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो इस जजमेंट का सहारा लेते हुए वी कैन फाइल अपील बिफोर द कमिश्नर अपील्स ऑल्सो। यानी पहले जो लंबा रास्ता था कि 264 में जाएंगे और 264 के बाद हाई कोर्ट जाएंगे, वो रास्ता अब छोटा होके एक रेगुलर अपील के मैकेनिज्म की तरफ वी कैन गो नाउ। और 139(9) का जब भी आप इस तरह के केस में रिस्पॉन्ड करें तो आप बाकायदा उसको रिस्पॉन्ड करते लिखिए कि इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसएससी, द SSC is not required to get its books of accounts audited, and therefore tax audit report has not been obtained. And because the tax audit has not been done, there is question of uploading tax audit report does not arise at all. ठीक है, आपको इस तरह का रिस्पॉन्स उसमें 139(9) के नोटिस में फाइल करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए जाएंगे। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का 139(9) में आया हो तो? नो क्वेश्चन सर।
कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा मेरे को तो। ठीक है सर। एक और जो प्रॉब्लम अभी रिसेंटली मुझे देखने में आई, बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों ने क्या गलती की, एक क्लॉज नंबर 21G है विच रिक्वायर्स अस टू रिपोर्ट कंटिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन ये कंटिंजेंट लायबिलिटी वो रिपोर्ट करनी होती है विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आ गई? एक कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट में हम डिस्क्लोज करते हैं विच इज नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंटिंजेंट लायबिलिटी विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी। बात समझे? दोनों लायबिलिटी अलग अलग तरीके की है। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो आपने P&L को डेबिट कर दिया है, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो आपके नोट्स एंड अकाउंट्स में पड़ी हुई है, आपने अपने बुक्स में उसको डेबिट नहीं किया है, राइट? तो ये दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट है। जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट करनी है वो आपको वो कंटिंजेंट लायबिलिटी रिपोर्ट करनी है जो आपके P&L में डेबिट है। वेलकम दुआ साहब। तो इसका रिपोर्टिंग करते समय ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्तों ने जो कंटिंजेंट लायबिलिटी थी विच वाज रिपोर्टेड इन नोट्स ऑन अकाउंट्स, और उसको उन्होंने गलती से इस क्लॉज में रिपोर्ट कर दिया, और सबकी 143(1) में ह्यूज एडिशंस होके आ गई हैं। अब वो सब बेचारे या तो 154 में लगे हुए और CPC में 154 की कोई सुनवाई होती नहीं। बाय ओवर एक्सपीरियंस वी नो, आप CPC में जितनी मर्जी बार आप 154 डाल दो, सेम ऑर्डर विल कम। वो कुछ नहीं करेंगे, अगले दिन आपका ऑर्डर आ जाएगा और आपका अनकंफर्ट और डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो उस सिचुएशन में जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आए, द अप्रोप्रिएट कोर्स विल बी फाइलिंग ऑफ अपील। आप तुरंत 154 की प्रोसीडिंग पैरेलल इनिशिएट करिए, असेसिंग ऑफिसर के पास 154 डालिए, लेकिन साथ में अपनी अपील की राइट को एक्सरसाइज करिए, और ऐसे हर केस में आप अपील जरूर फाइल करते हैं। एक और जो लेटेस्ट अपडेट था, जो टैक्स ऑडिट की नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो 60 है। तो हमारे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट ने एक्शन लिया कि जिन लोगों ने 60 से ज़्यादा टैक्स ऑडिट कंप्लीट किया अपने टेन्योर में, अपने 1 साल के अंदर, तो उन्होंने इसको चैलेंज किया कि जो 60 की लिमिट है विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय इंस्टीट्यूट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और मेरे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन पे ये इन्फ्रिंजमेंट है और ये रिस्ट्रिक्शन इंस्टीट्यूट लगा नहीं सकता। ठीक है, तो सारे डिफरेंट हाई कोर्ट से डिफरेंट ऑर्डर दिए थे। बाद में फिर इंस्टीट्यूट ने एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल की और सारे केसेस अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 60 की टैक्स ऑडिट की लिमिट थी, और इंस्टीट्यूट ने जिसके ऊपर भी जिस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर के ऊपर एक्शन लिया था, वो सारे एक्शंस को स्टे कर दिया है। ठीक है सर, तो ये एक आप लोगों के इन्फॉर्मेशन की चीज है, और इसका केस का नाम नोट करना चाहो आप, दिनेश कुमार वर्सेस ICAI, दिनेश कुमार वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर 1084 ऑफ 2021। ठीक है सर, ये एक छोटा सा अपडेट था। और अब चलते हैं क्लॉज नंबर 30C पर, उसके बाद डिस्कशन करेंगे क्लॉज नंबर 44, और उसके बाद जो जनरल क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है जी। क्लॉज नंबर 30C, ये आपका 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होगा। ऑल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स साइंड आफ्टर 31 मार्च 2022, उन सब के ऊपर क्लॉज नंबर 30C की रिपोर्टिंग कंपलसरी। क्लॉज नंबर 30C की रिपोर्टिंग को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड चैप्टर 10A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 95 to 102, गार जिसे बोलते हैं, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है, ये एक्चुअली में इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट बना है OECD के बेस पर, कि जिस समय कुछ एसोसिएटेड लोग मिलकर टैक्स आर्बिट्रेज का फायदा उठाने के लिए अपनी ट्रांजैक्शन को इस तरीके से प्लान करते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम इनकम है वो ऐसे जोन में आके आ जाती है जहां पर हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम होती है, या डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में हमारी लायबिलिटी कम होती है, राइट? तो इसको बोलते हैं यूज ऑफ टैक्स आर्बिट्रेज। तो हम अपनी ट्रांजेक्शन को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि हमारी इनकम जो है, या जैसे मान लिया हमारे को कहीं ATI की छूट मिलती है या सेक्शन 10AA की छूट मिलती है, तो हम अपने ट्रांजेक्शन को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी इस तरीके से कम हो जाती है कि हम अपनी पूरी इनकम टैक्स फ्री एरिया में जाके कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो जो उस अरेंजमेंट में पार्टीज होती है, तो ये जो चैप्टर पूरा का पूरा बनाया,
उन्होंने कहा सब इस तरह का कोई भी अगर अरेंजमेंट किया हुआ है तो दैट विल नॉट बी परमिटेड। तो उसके लिए करना क्या है, अब आपके एसएससी जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, अब उस एक्टिविटीज पे आपको उसका जैसे कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, अब वो आपको उठाना है, उठा के आपको देखना है कि एज ए होल अगर ये अरेंजमेंट ना किया होता तब इस कंपनी को, एसएससी को कितना टैक्स लगता, और ये अरेंजमेंट करने के बाद सारे लोगों ने मिलकर कितना एग्रीगेट टैक्स दिया। बात समझ में आ गई। अब अगर वो अरेंजमेंट ना होता तो टोटल मेरी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कितनी आती, और अगर इन सब लोगों की कंबाइंड में ये सारा अरेंजमेंट करने के बाद टैक्स लायबिलिटी निकालूं तो इन्होंने कितना टैक्स बचा लिया। ठीक है, इसको बोलेंगे टैक्स बेनिफिट, इसका नाम रखा। तो इन्होंने इसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना दी कि 1 अप्रैल 2017 से जो पुराने अरेंजमेंट है उसके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगा फिलहाल, 1 अप्रैल 2017 से पहले। और बेसिक एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना दी कि 3 करोड़ रुपए का टैक्स बेनिफिट होगा तभी आपको रिपोर्टिंग करनी, तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अगर टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ रुपए होगा तभी आपको ये रिपोर्टिंग करनी। अब इसमें रिपोर्टिंग में हमसे मांगते क्या है, वेदर द एसएससी हैज एंटर्ड इनटू इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, अरेंजमेंट। यहाँ एग्रीमेंट वर्ड नहीं है, वर्ड है अरेंजमेंट। विदाउट एग्रीमेंट भी अगर कोई ट्रांजेक्शन का आपस में ओरल अरेंजमेंट भी है तो वो भी इसमें फॉल करेगा, यानी रिटर्न एग्रीमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर। एज रेफर टू इन सेक्शन 96, सेक्शन 96 ने डिफाइन कर दिया कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट कौन से होते हैं। वो कहते हैं कोई भी इंडिपेंडेंट पार्टी जब आर्म लेंथ प्राइस पे कोई ट्रांजेक्शन करती है, और वो अगर जो अरेंजमेंट है वो ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट पार्टी आर्म लेंथ प्राइस पे करे, और वो जो अरेंजमेंट है इट रिजल्ट्स इनटू अब्यूज ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजंस और मिसयूज ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजंस, या फिर उन्होंने कहा कि इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस और बोनाफाइडी आपको उस अरेंजमेंट में नजर ना आए और उससे टैक्स बेनिफिट अराइज हो, देन इट विल बी टर्म्ड एज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब यहां पर रिपोर्टिंग में इन्होंने ये जिम्मेदारी दे दी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि पूरे साल में आप एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करिए और आप बताइए कि एसएससी ने कोई इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट किया है कि नहीं किया। अब ये जो लाइबिलिटी है हमारे ऊपर, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज सो वनरस, इट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। ये कोई साधारण सी इतनी बात नहीं है कि मैंने एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई की और मुझे पता लग जाए कि एसएससी ने किन किन लोगों के साथ डील किया है, उनकी अपना टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, उनकी अपनी टैक्स लाइबिलिटी क्या है, और वो टैक्स बेनिफिट किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट जो अरेंजमेंट के पार्टनर है उनके पास, जो एकोमोडेटिंग पार्टीज है उनके पास टैक्स बेनिफिट किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ माई एसएससी, ये हमारे लिए वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। यहां पर सेक्शन में लिखा है कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी पार्टीज टू द अरेंजमेंट है दे विल बी कंसिडर्ड एज वन। उन सारी पार्टीज की ट्रांजेक्शन को आपको मर्ज करके एक जगह देखना पड़ेगा। इट मींस कि इस क्लॉज की रिपोर्टिंग करने के लिए आई एम रिक्वायर्ड टू वेरीफाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स स्टेटस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हु इज पार्टी टू दैट अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई सर। अनलेस एंड अनटिल मैं सबकी बुक्स को वेरीफाई ना कर लूं, सबकी इंफॉर्मेशन मेरे पास ना आए, आई विल नॉट बी एबल टू मेक एनी रिपोर्टिंग अंडर दिस क्लॉज। ठीक है सर। मुझे नहीं पता लगेगा कि ये कैसे हुआ, ये वेदर टैक्स बेनिफिट इज ₹3 करोड़ और मोर, और मेरी इसमें रिपोर्टिंग कब करनी है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर। तो इस सिचुएशन में 30C के लिए जो पहली रिपोर्टिंग है कि वेदर द एसएससी हैज एंटर्ड इनटू एनी परमिसिबल एग्रीमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ये बात कर रहे हैं हम नए एग्रीमेंट की। अब एक बात करते हैं, दूसरी सिचुएशन समझते हैं कि एसएससी ने पहले कोई एग्रीमेंट एंटर किया हुआ है पिछले सालों में। इसका प्रोसीजर क्या है, असेसिंग ऑफिसर जब आपका असेसमेंट देखेगा तो असेसमेंट करते समय वो देखेगा कि कोई टैक्स बेनिफिट अराइज हो रहा है किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, तो वो प्रिंसिपल कमिश्नर को रेफरेंस देगा। फिर सेक्शन 114BA के हिसाब से वो उसका रेफरेंस के लिए अप्रूविंग पैनल को उसको रेफर करेगा, और फिर वो उसको ब्रांड कर देंगे दैट दिस अरेंजमेंट इज इम्परमिसिबल। एंड व्हेन ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज इम्परमिसिबल, तो वो क्या होगा, उसका कॉर्पोरेट बिल उठ जाएगा और उस ट्रांजेक्शन को डिसरिगार्ड करके उसकी जो पूरी लाइबिलिटी टैक्स की है उस कंपनी के ऊपर या एसएससी के ऊपर आ जाएगी। ये प्रोसीजर है।
तो अगर कोई ऐसा इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है जो प्रीवियस ईयर्स में एसएससी का इन्वोक हो चुका हो, उसका कोई अरेंजमेंट इम्परमिसिबल हो चुका हो, तो उसका कोई टैक्स बेनिफिट अगर करंट ईयर में आ रहा है तो वो हमें एग्जामिन करना है। 3 तरह की रिपोर्टिंग हो गई। नंबर 1, वेदर ए न्यू अरेंजमेंट इज एंटर्ड इनटू बाय द एसएससी। पहला, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सर, इसका हमें डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। आप एसएससी से डिक्लेरेशन लीजिए दैट वी हैव नॉट entered into any arrangement and which can be termed as impermissible arrangement under this under chapter 10A of the income tax act, है ना। और उसके बाद फिर आप अपना डिस्क्लेमर दिए, इन द एब्सेंस ऑफ verification of availability of the books of accounts and information in respect of the other parties, we are unable to comment and supply this information whether the SSC has entered into any impermissible avoidance agreement during the year or not, during the previous year or not. ये आपको पहला डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। दूसरी रिपोर्टिंग हुई जब आपके पास कोई ऐसा इम्परमिसिबल एग्रीमेंट है जो आपके अप्रूविंग पैनल ने प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी उसको इम्परमिसिबल कर दिया है, तो उस अरेंजमेंट के बेस पे अगर करंट ईयर में कोई टैक्स बेनिफिट आ रहा है तो वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना। ठीक है सर, यहाँ पर आपको क्या रिपोर्ट करना है? नेचर ऑफ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट। ठीक है सर, अगर पहले कमिश्नर ने पिछले सालों में कोई किसी एग्रीमेंट को आईए डिक्लेयर किया है तब आपको उसका टैक्स बेनिफिट यहाँ पर रिपोर्ट करना है। और थर्ड सिचुएशन आएगी अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिसके लिए असेसिंग ऑफिसर ने रेफरेंस रेज कर दिया है टू द प्रिंसिपल सीआईटी, लेकिन प्रिंसिपल सीआईटी ने अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, अप्रूवल पैनल ने उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, उस सिचुएशन में भी आपको उसकी रिपोर्टिंग इस क्लॉज में करनी पड़ेगी। ठीक है सर, तो क्लॉज नंबर 30C में 3 रिपोर्टिंग आपकी होगी। रिपोर्टिंग नंबर 1, आपको अपना डिस्क्लेमर देना है, एसएससी से डिक्लेरेशन लेनी है। अच्छा, आपकी कोई एसएससी ऐसा है जिसकी किसी भी पार्टी से 3 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ठीक है, तो आपके लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि इसके थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसके रूल्स हैं। रूल आप साथ में पढ़िएगा, रूल 10U टू रूल 10UF, ये रूल आपको साथ में पढ़ने हैं। सेक्शन है इसका 95 to 102। ठीक है, तो आप अप्रोप्रिएटली इसका डिस्क्लेमर अपनी रिपोर्ट में आपको इनकॉर्पोरेट करना है। आप एसएससी से डिक्लेरेशन ले लीजिए और आप साथ में अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एज टू द पार्टीज ऑफ द अरेंजमेंट, देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर टैक्स स्टेटस, वी आर अनेबल टू कमेंट अपॉन दिस इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये, क्वालिफिकेशन आप कहाँ पर डालोगे? अब ये जो क्लॉज है, इस क्लॉज में क्वालिफिकेशन डालने की जगह नहीं है। इस रिपोर्ट, ये जो क्लॉज की रिपोर्टिंग है वो आपसे पूछता है एग्रीमेंट है, नहीं है, या नॉट एप्लीकेबल है। इसके अलावा तीसरे क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करने का मौका नहीं देता। या फिर अगले आगे पूछता है कि नेचर ऑफ एग्रीमेंट बता दीजिए और उसका टैक्स बेनिफिट का क्वांटिफाई कर दीजिए, ये आपसे पूछता है। अब आपको क्वालिफिकेशन करनी है तो कहाँ करेंगे आप? फॉर्म नंबर 3CD के क्लॉज नंबर 5 में, वहां पे आप जाके अदर्स में जाके उस क्लॉज नंबर की अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन वहां पर आप अपना डिस्क्लेमर इसका दे दीजिए। ठीक है सर, तो ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज नंबर 30C की। इसके अलावा क्लॉज नंबर 30C में और कुछ नहीं है। तो किसी को इस पे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो तो क्लॉज नंबर 30C से आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्दर हेलो जैन साहब, टोटल इनकम ऑफ द पार्टी मैंने बिल्कुल कहा अतुलपुरी साहब, आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% ठीक है। मैंने आपको यही कहा कि जब तक मेरे पास अदर पार्टीज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, इट विल टोटली इम्पॉसिबल फॉर मी टू अराइव एट द फिगर ऑफ द टैक्स बेनिफिट। और मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि वेदर दिस इज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट और नॉट। आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट जब तक मैं तो इसलिए हमारे पास डिस्क्लेमर के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो अतुलपुरी जी, यू आर 100% राइट, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आपने कहा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन ऑडिटर डिटेक्ट इफ ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज इम्परमिसिबल और नॉट जस्ट बाय गोइंग थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप बिल्कुल, जो अतुल जी मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने बिल्कुल वही शब्द लिखे हैं। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें डिस्क्लेमर ही देना है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर्स में, अर्लियर प्रीवियस ईयर्स में अगर कोई अरेंजमेंट इम्परमिसिबल
टर्म कर दिया गया है बाय द अप्रूविंग पैनल और द बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और ए रेफरेंस हैज बीन मेड बाय द असिस्टिंग ऑफिसर, तो उसका आपको टैक्स बेनिफिट निकाल के देना पड़ेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ठीक है सर, उसमें आप एसएससी के जवाब को भी कंसीडर करेंगे, एसएससी के जवाब को भी कंसीडर करेंगे, एसएससी ने जो पार्टिसिपेट किया होगा प्रोसीडिंग्स में, और उस अरेंजमेंट को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर आपको एसएससी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, आपको एसएससी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो भी आप अपना डिस्क्लेमर देंगे कि देखिए साहब, ये इम्परमिसेबल एग्रीमेंट है टू अवर नॉलेज, ये टर्म किया गया था और करंट ईयर में। देखिए, मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ, हमारे पास एक टाइम बाउंड जॉब है, हमारे को उस टाइम के अंदर इस काम को फिनिश करना है। इफ द एसएससी सप्लाइज अस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट कर देंगे। अगर एसएससी हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं देता, राइट, तो उस केस में वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गिव अवर डिस्क्लेमर। असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है, वो अपनी पावर यूज करके असेसमेंट के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो ले लेगा। हमारा काम है अपना टैक्स ऑडिट कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट फाइल करना, दैट्स ऑल। क्लियर सर? जैन साहब। जी सर। हेलो सर, राकेश गुलाटी बोल रहा हूँ। जैन साहब, हमारे क्लाइंट है, उनका एक टेक्नोलॉजिकल लाइसेंस एग्रीमेंट चल रहा है सिंस 2004। इट्स ए बेसिकली फॉरेन कंपनी and they are taking the license fee every year since 2004. So then this 30C is now applicable on them? नहीं, 1 अप्रैल 2017 से बड़ा क्लियर है। 1 अप्रैल 17 से पहले का जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आपकी we should mention it not applicable. हाँ बिल्कुल, आप लिखिए नॉट एप्लीकेबल। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल लिखना चाहते हैं तो आप फॉर्म नंबर 3CD के क्लॉज नंबर 5 में जाके लिख दीजिए कि एक अरेंजमेंट है विच वाज मेड इन द ईयर 2004 या 2005। ये अपने पास वर्किंग पेपर भी बना के रख लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो 1 अप्रैल 2017 ये कट ऑफ डेट है, उससे पुराने किसी अरेंजमेंट के ऊपर हमें कमेंट नहीं करना है। नहीं, वैसे भी सर हमारे उसमें टीपी में आज तक कभी कोई स्पेसिफिक एडिशन नहीं हुई। काफी सालों से टीपी असेसमेंट होती आ रही है। सर जब कोई एडिशन नहीं हुई और अभी तक किसी ने आईपीए के लिए रेफरेंस नहीं किया तो यू आर कंप्लीटली सेफ। यू आर कंप्लीटली नॉट एप्लीकेबल लिख देते, दैट इज बेटर सर। बिल्कुल बिल्कुल लिखिए नॉट एप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जैन साहब, एक क्वेश्चन था। जी सर। ये जो 3CD बनाता है क्लाइंट अपना, जी सर, ये तो आपने शुरू में बोला, आज हम भी यही सोचते आ रहे हैं और है भी एक्चुअल में। तो 3CD में 30C क्लास में वो क्यों लिखेगा कि मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं सर, मैंने आपको ये बोला कि फॉर्म नंबर 3CD की इंफॉर्मेशन है वो एसएससी सप्लाई करता है, रिपोर्टिंग हमारी है। हाँ ठीक है, तो वहां तो वो ऑलवेज नो ही लिखेगा। नहीं, वो लिखेगा तो आप लिख दीजिए कि आप साथ में अपना डिस्क्लेमर भी तो लिखेंगे। आप ये लिखेंगे द एसएससी हैज सबमिटेड दैट ही हैज नॉट एंटर्ड इनटू एनी इनपरमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, राइट, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स वी डिड नॉट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्टीज टू एनी अरेंजमेंट। वो तो बात आपने जो बताई सही बताई एकदम। बिल्कुल, आपको डिस्क्लेमर लिखने के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। हाँ, तो ये फार्म में तो ऑलवेज कोई भी यस तो लिखेगा ही नहीं, जहां तक मैं सोच रहा हूँ। कोई भी किसी भी कंपनी में कोई भी एसएससी यस नहीं लिखेगा इसमें तो कि मैंने कराया। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है कि जो हमारा अब फॉर्म नंबर 3CD में हमसे कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग ले, बट अवर जॉब इज नॉट टू इन्वेस्टिगेट। ये बात बड़ी क्लियर है। हमारा काम जो है ना, टैक्स ऑडिट में आप हमारा इतना स्कोप ऑफ वर्क नहीं बढ़ा सकते कि हम पूरे इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेट करके असेसिंग ऑफिसर को निकाल के दें। तो दिस इज नॉट अवर जॉब बेसिकली। तो अब ये आ गया है तो हमारे शुरू के गाइडेंस नोट ने बड़ा क्लियर कर दिया कि आप इस पर अपना डिस्क्लेमर दीजिए और आप अपना एक तरफ हो जाइए। और ये 3 करोड़ वाली जो लिमिट है, इसका मतलब 10 करोड़ की एडिशन है, एडजमेंट हो तभी 3 करोड़ कंसीडर करेंगे, कैसे करेंगे? 3 करोड़ डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। वो तो सही है, लेकिन इसका मतलब है कि किसी ने 10 करोड़ का एडजमेंट टिप्पणी में आएगा ना जी? नहीं सर, इसमें सर भी इतनी आसान बात नहीं है एक्चुअली। मैं जितने से आप वही पूछना चाह रहा था मैं। कई बार क्या होता है, देखो सर वी आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मुझे यहाँ नहीं पता लोग किस तरीके से सर्कुलर वो अरेंजमेंट बढ़ाते हैं। एक बिल काटा, दूसरी से तीसरी को बिल काटा, तीसरी से चौथी को बिल काटा, और इस तरह से 4-5 पार्टियों का एक अरेंजमेंट बनाया और अल्टीमेटली एक SEZ में जाके आपकी इनकम कंसंट्रेट हो गई जहां पर वो एग्जम्प्ट है। ठीक बात है। या जब आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, आयरलैंड में आपके पास 6% का टैक्स आर्बिट्रेज है, इंडिया में आपको 30% है, यूएस में आपको 30% है। तो आप क्या करते हैं, अपनी इनकम को ट्रांजेक्शन को इस तरीके से घुमाते हैं
कि आपकी अल्टीमेटली इनकम जाके आयरलैंड में जाके कंसंट्रेट हो जाती है, वहां पे वो 6% हो जाता है, बाकी सब जगह आपका 30% बच जाता है। ठीक है सर, ये है बेसिकली इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब ये इतनी बड़ी सर्कुलर ट्रेडिंग है, अगर एक पार्टी ने, अब सपोज कीजिए मेरे पास एक पार्टी से परचेज का बिल आया, एक पार्टी से सेल का बिल आया, अब मेरे पास तो ये दोनों तरफ का पट्टा बंधा हुआ है, इसके बियॉन्ड तो मैं जाकर नहीं देख सकता ना, सही बात है, वेदर इज पार्ट ऑफ सम अरेंजमेंट और नॉट। एंड ही मे बी, अब जीएसटी की जो बिलिंग होती है, जीएसटी के बिलिंग के जो केसेस हमारे वाला था सामने, मैं आगे, जो जीएसटी वाले जो बिलिंग के जो केसेस हमारे सामने आए, जो 1500 करोड़ का फ्रॉड है या 2000 करोड़ का फ्रॉड है, वो क्या करते हैं, छोटी छोटी फर्में बनाते हैं, किसी में 15 करोड़, किसी में 20 करोड़, किसी में 50 करोड़, और 2000 करोड़ का फ्रॉड करने के लिए आपको पता लगेगा उन्होंने 150 एंटिटी बनाई। हेलो, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू कि हम 150 आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटीज को हम जाके उनकी बुक्स को देख सके, उनको कर सके? इट्स ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये इन्वेस्टिगेशन का हमारा, हम तो वी आर नॉट सो मच दैट मच कैपेबल कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को कर पाएंगे कभी। ठीक बात, ठीक है ना सर? तो ये इतना सिंपल काम नहीं है जितनी सिंपल तरीके से हमसे रिपोर्टिंग मांग ली है इसकी। हाँ वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये इतना सिंपल काम है नहीं सर। ठीक बात है सर चार्टर्ड अकाउंटेंट को चित्रगुप्त समझने लग पड़े हैं सर गवर्नमेंट आजकल। गुलाटी साहब मैं करता सर, वो आजकल चित्रगुप्त समझ रहे सर चार्टर्ड अकाउंटेंट को। जी जी जी, ठीक है सर। तो ये क्लॉज नंबर 30C हमारा कंप्लीट हो गया, और 30C से रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, और वरना फिर आगे चलते हैं क्लॉज नंबर 44 पे। अब मैंने शुरू में कहा कि जो फॉर्म नंबर 3CD की जो इंफॉर्मेशन है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन अकॉर्डेंस विद इनकम टैक्स एक्ट, राइट। अब ये जो क्लॉज नंबर 44 की जो रिपोर्टिंग है, क्या इसका कोई कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पे इम्पैक्ट है क्या? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पे आप किस पार्टी से आपने जीएसटी वाले से माल परचेस किया, पार्टी आपकी जीएसटी में रजिस्टर्ड थी या नहीं थी, डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ द एसएससी? नहीं है, आंसर नहीं है सर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। तो हमसे किस लिए ले रहे हैं? ये अपनी इंफॉर्मेशन कंपाइल करना चाहते हैं कि एसएससी ने जो ट्रेडिंग की है, जो बिजनेस किया है, उसमें वो जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टी कितनी है और विदाउट जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टी कितनी है। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन करने के लिए हमसे किया है। अब क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन, बहुत सारे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर्स ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी फाइल कर दी है, टेकिंग अपॉन वन व्यू और अनदर व्यू। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, आप जब भी रिपोर्ट करो, आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज नंबर 44 में रिपोर्टिंग करें, तो आप उसकी वर्किंग बनाएं। बिना वर्किंग बनाए आप इसमें रिपोर्ट ना करें। आप वर्किंग बनाएं, जो जिस एक्सेल शीट में आप बैलेंस शीट टाइप करते हैं वहीं पर आप वर्किंग बनाएं। वर्किंग बनाने का सिंपल फार्मूला क्या है? जितने भी आपने P&L में डेबिट किए एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग परचेजेस, उनका आपने ग्रैंड टोटल ले लिया, उनको सबको एक जगह ले लिया। साथ में जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो भी आपने एक जगह ले लिया। आपका टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द ईयर वो आपका निकल के आ गया। ठीक है सर? अब आपको उसमें से निकालना है कि इस एक्सपेंडिचर में वो कौन सा एक्सपेंडिचर है जो जीएसटी में कवर ही नहीं होता, जो जीएसटी के स्कोप से बाहर है। ठीक है? अच्छा, मैं जीएसटी का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने आज हमारे पार्टनर राकेश गर्ग जी से पूछा, सर ये जीएसटी, तो राकेश गर्ग जी ने मुझे बड़े सिंपल तरीके से बताया कि हमारे यहाँ क्या कि जितनी भी जो गुड्स हैं वो जीएसटी में कवर्ड है, और सर्विस के लिए डिफाइन करके कहा कि जो गुड्स नहीं, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। इसका मतलब एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर जीएसटी। फिर उन्होंने बोला कि शेड्यूल 3 है सीजीएसटी का, शेड्यूल 3 में जाके उन्होंने बता दिया कि क्या क्या चीज गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी। और उसमें खास तौर से उन्होंने जो चीजें बताई कि जीएसटी के एम्बिट में कवर नहीं होती, सैलरी कवर नहीं होगी, वेजेस कवर नहीं होंगे, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी के एम्बिट में कवर नहीं होगी, आपने हिंदुस्तान के बाहर से कहीं से माल खरीदा और हिंदुस्तान के बाहर ही बेच दिया, राइट, तो वो ट्रांजेक्शन जीएसटी के स्कोप में कवर नहीं होंगी। आप शेड्यूल 3 को देख लीजिएगा, शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसमें जो आइटम जीएसटी में कवर नहीं होती वो आइटम इस टोटल एक्सपेंडिचर में से हटा दी। ठीक है सर?
पहले आप सबसे पहले क्या हटाएंगे, वो आइटम हटाएंगे जो शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में लिस्टेड है और जिनका एक्सपेंडिचर इस आइटम में हुआ है, वो आप इसमें से निकाल देंगे। फिर आप वर्ड यहां पर यूज किया है एक्सपेंडिचर, वर्ड यूज किया है एक्सपेंडिचर। अब जो एक्सपेंडिचर है इट डज नॉट इंक्लूड अलाउंस, यानी डेप्रिसिएशन आपका अलाउंस है, बैड डेट्स आपका एक सेक्शन के हिसाब से आपका प्रोविजन है या क्लेम है, ठीक है सर, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये आप उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर में से हटा दीजिए। आपने डेप्रिसिएशन हटा दिया, आपने बैड डेट हटा दिया। बहुत से दोस्तों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है उन्होंने वो एंटिटी यूज किया है, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड। अब एंटिटी ऑल्सो इंक्लूड्स इंडिविजुअल। एंटिटीज को सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि कोई इंडिविजुअल नाम में अगर किसी ने जीएसटी नंबर ले लिया तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एंटिटी। तो इन माय ओपिनियन हम कहें कि एंटिटी ऑलवेज मींस अदर देन इंडिविजुअल, दैट इंटरप्रिटेशन विल नॉट होल्ड गुड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं रहेगी। तो इस तरीके से करके आपने अपने टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लिए, हेडवाइज आपके पास उसकी डिटेल आ गई। अब जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप लिखते हैं, इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो आपका सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके दे रहा है रिपोर्ट कि कौन सी आइटम आपने जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर से खरीदी है, ठीक है, और कौन सी एक्सपेंडिचर आपने जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर को दिया है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे टेलीफोन एक्सपेंडिचर है, हमने उसका बेशक चाहे इनपुट ना लिया, बट इट इज पेड टू रजिस्टर्ड डीलर। इन द सेम मैनर जब हम बैंक इंटरेस्ट की बात करते हैं, बैंक इंटरेस्ट के बाद में उन्होंने बताया कि इसके दो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 2 और नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 जीएसटी के नोटिफिकेशन है, जो बोलते हैं व्हाट गुड्स आर एग्जम्प्टेड एंड व्हाट सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड। ठीक है, वहां से वो आप ये एग्जम्प्टेड की सिचुएशन देख लीजिए, एग्जम्प्टेड आइटम्स क्या है उनको देख लीजिए। अब जो इंटरेस्ट टू बैंक्स है वो हमारी रजिस्टर्ड जीएसटी है, ठीक है सर, और इंटरेस्ट यदि हम किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं, इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। अब यहाँ पर आपने का जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकल आया, हेडवाइज आपका एक्सपेंडिचर निकल आया, तो आपने उस हेडवाइज एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपने जीएसटी में रजिस्टर्ड एंटिटी को क्या पेमेंट की है, और अदर देन हु आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, अदर देन पर्सन हु आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, उन लोगों को जो पेमेंट करी है उनकी दो ब्रेकअप आप अलग अलग बना लीजिए। एक्सपेंडिचर made to the parties who are registered in GST and expenditure incurred in respect of parties which are not registered in GST. जो not registered in GST उनकी आपको कोई फर्दर डिटेल नहीं बनानी, जो रजिस्टर्ड इन जीएसटी हैं उनकी आपको 3 फर्दर ब्रेकअप और निकालने हैं। पहला ब्रेकअप एग्जेप्ट, जिनका नील रेट ऑफ टैक्सेशन है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। दूसरा ब्रेकअप कंपोजिशन डीलर से जो आपने परचेस किया, और तीसरा जिसके आपके ऊपर टैक्स रेट लग गया है। ठीक है सर, तो ये ज्यादा लंबा काम नहीं है, ठीक है, और लेकिन बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जो भी आप अपनी रिपोर्टिंग बनाए उसका वर्किंग पेपर बना के रखें और उस वर्किंग पेपर को सेफ एंड सिक्योर रखें। कल को आपसे पूछा जाए कि आपने इंफॉर्मेशन कैसे रिपोर्ट की, तो आपके पास उसका वर्किंग पेपर होना चाहिए। ठीक है सर, तो इस तरीके से ये जीएसटी की रिपोर्टिंग हो जाएगी। क्लियर सर। अब आपका एसएससी हो सकता है कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या उसके ऊपर एक क्लॉज अप्लाई होगा? द आंसर इज यस, अप्लाई होगा। आपका एसएससी जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, वेदर ही इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी और नॉट, इट इज टोटली इररेलेवेंट। ठीक है सर। वैसे इन माय ओपिनियन इस डिटेल को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। इट्स ए हार्डली मैटर ऑफ हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वर्किंग पेपर बनाइए, रिपोर्ट कर दीजिए। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कह रहे हैं सर इसका डिस्क्लेमर दे देते हैं, तो आप देना चाहो दे दो, बट आई विल नॉट एडवाइस कि आपको उसका डिस्क्लेमर देना चाहिए। इट्स वेरी इजी एंड इन्फॉर्मेशन, और इसमें किसी प्रकार की इस इंफॉर्मेशन को बनाने में कोई दिक्कत है नहीं। और राजेश भाई, आपने मुझसे कहा था कि 6:15 बजे तक मुझे पूरा करना है, लेकिन फिर भी मैं हूँ, और जहाँ तक मेरे लिए जो नए पॉइंट्स है दैट आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। और यूं तो अगर टैक्स ऑडिट पे बुलाओगे, अगर मैं पुरानी नॉलेज खंगा लूंगा तो इतना बोल दूंगा कि आपको शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, राइट। तो लेकिन बिकॉज ऑल ऑफ यू आर लर्नेड पर्सन्स, तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उन्हीं को लेंगे,
अदरवाइज मेरी 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 एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन तो सिर्फ 4 ही हैं सर। आप की मास्टरी भी है अपील में, और आजकल 148 के नोटिसेस भी आ रहे हैं, और टाइम भी है सर हमारे पास, और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, फिर उसकी हमें रिप्लाई भी करने हैं। किसी ने काफी हमारे रिप्लाई का कंसिडरेशन ना करते हुए भी असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिए। तो उसमें सर 5-10 मिनट आप थोड़ी सी लाइट डालो सर। काम करते हैं, जीएसटी ये 3CD से रिलेटेड अगर ये 4-5 क्वेश्चन है इनको पूरा कर देते हैं। ओके सर, ओके ठीक है, और डन। फिर पूरा करके, और पहला क्वेश्चन है एनोनिमस अटेंडी, इंटरेस्ट ऑन जीएसटी, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस एंड लेट फीस ऑन जीएसटी, विच कॉलम आई कैन शो? क्लॉज नंबर 44 और टैक्स ऑडिट। सर ये क्लॉज नंबर 44 में रिपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस अगर आपका कहीं जा रहा है तो वो क्लॉज नंबर 34 में रिपोर्ट होता है, और इंटरेस्ट ऑन जीएसटी की कहीं पे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन जीएसटी इज एन अलाउबल एक्सपेंडिचर, वो डिसअलाउड नहीं होता है। ठीक है, अंकुर गोयल जी, इज हेड वाइज एक्सपेंस टू बी रिपोर्टेड इन टोटल एक्सपेंडिचर। अंकुर गोयल जी, आपको सिर्फ टोटल फिगर देनी है, और आपको हेड वाइज रिपोर्टिंग क्लॉज नंबर 44 में नहीं करनी है। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, P&L की पूरी डेबिट साइड उठा लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो आपने एक्सपेंडिचर किया है वो उसमें ऐड कर दीजिए, उसमें से जो आइटम शेड्यूल 3 CGST में कवर नहीं होती उसको रिड्यूस कर दीजिए, राइट। उसके बाद जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी उसमें से आप अलाउंसेस हटा दीजिए, उसमें से आप बेड डेट्स हटा दीजिए। फिर जो आपके पास नेट आइटम्स बचेंगी उस आइटम में से आप मार्क करिए कि कितना आपने एंटिटीज हु आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी उनको दिया है, और कितना आपने एंटिटीज हु आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी उनको दिया है। फिर जो एंटिटीज हु आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी उनको फिर आपको 3 टुकड़े करने हैं, एग्जेम्प्ट, पेड टू कॉम्पोजिशन डीलर, और जिसके आपने टैक्स रेट लगा के पेमेंट किया है। ठीक है सर, तो सिंपल वर्किंग है, और इसमें हेड वाइज रिपोर्टिंग नहीं करनी। ठीक है सर, जीएसटी नंबर वाइज अंकुर गोयल जी का दूसरा क्वेश्चन है कि सर जीएसटी नंबर वाइज रिपोर्ट करना है कि बिल्कुल नहीं करना? सर कोई जरूरत नहीं है, आपको कंबाइंड फिगर, सिर्फ फिगर्स रिपोर्ट करनी है यहाँ पर। और एनोनिमस अटेंडी प्रोपराइटर फर्म बैलेंस शीट का फॉर्मेट इज मैंडेटरी। देखिए सर, जो इंस्टीट्यूट का गाइडेंस आया है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, इनका क्वेश्चन है कि जो गाइडेंस नोट आया है विच इज एप्लीकेबल ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, जो इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड किया है कि जिस तरीके से शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट दिया है, इसमें प्रीवियस ईयर की फिगर भी देनी है। ठीक है सर, और नया फॉर्मेट इस साल दिया है, तो एटलीस्ट जिसका भी आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू कि आप उनको नए फॉर्मेट में रिपोर्ट करें। ठीक है, अपनी इस साल की जो आप बैलेंस शीटें जाएं वो आप नए फॉर्मेट में बनाएं, ऐसी इंस्टीट्यूट की आपसे एक्सपेक्टेशन है। ठीक है सर। और फिर ये भरत अरोड़ा जी का क्वेश्चन है, इंट्राडे लॉस 2700 रुपये, टर्नओवर 2700 रुपये, ओनली टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड ड्यू टू लॉस और नॉट? सर ये इंट्राडे लॉस आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी ले जा सकते हैं, और 2700 रुपये पे टैक्स ऑडिट नहीं होता। ठीक है सर। और संजीव छाबड़ा जी है, इन ITR शेड्यूल J, details of investment is specified under section how to report this corpus and non-corpus fund if the same is invested in 2 modes, immovable property as well as balance with bank। देखिए सर, जितना आपके पास कॉर्पस फंड है, कॉर्पस फंड कैन only be invested in immovable property and bank deposit and the other modes specified under section 11(5)। तो जितना आपका कॉर्पस फंड है उतनी इन्वेस्टमेंट पहले आप उसको पूरा कर दीजिए। ठीक है सर, 11(5) में आपको उसी को पूरा करना है। सपोज कीजिए मेरा 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड है, 90 लाख रुपए की मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और 15 लाख रुपए का मेरा बैंक बैलेंस है। तो जब मैं 11(5) की इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मेरा कॉर्पस, 90 लाख रुपए मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और 10 लाख रुपए बैंक बैलेंस दिखाऊंगा इंस्टेड ऑफ 15 लाख। ये इसकी रिपोर्टिंग करने का तरीका होता है संजीव चावड़ा जी। ठीक है सर। किशोर शाह जी, नया फॉर्मेट मैंडेटरी है। तो सर मैंने बताया इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि आप टेक्नोलॉजी को और बदलाव को अडॉप्ट करें, और नए फॉर्म में आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दें। जिन लोगों के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता उसमें यदि आपसे वो नया फॉर्मेट नहीं भी यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जो टैक्स ऑडिट भी कर रहे हैं, अगर आपने ओल्ड फॉर्मेट भी कर दी तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, कोई पीनल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है, और इंस्टीट्यूट आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप नया फॉर्मेट यूज करें। हो गए सर सारे क्वेश्चन? आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन इफ पॉसिबल प्लीज कमेंट। टीडीएस एप्लीकेबल ऑन स्लम्प सेल? अंकुर जी, ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही है, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है सर। हेलो, हो गए सबके क्वेश्चन? हो गए ना सर? यस 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 सर, यस सर। हेलो,
हेलो। हाँ बोलो सर, बोलो शर्मा जी बोलो। हाँ, नहीं सर, आपने आपका तो व्यू दे ही दिया कि ये क्लॉज 30C और 44 एनी ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर 1/4/2022 जरूरी है। हाँ लेकिन मैं जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, लोगों को अभी भी बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि बिकॉज 31/3/2022 तक डिफर किया था, तो उनको लगेगा या नहीं लगेगा। तो जस्ट आपका व्यू बराबर है, जस्ट फॉर जनरल सर इंफॉर्मेशन। बिल्कुल कंफर्म है, कोई झगड़े में मत पड़िए आप। ये आपके ऊपर या एप्लीकेबल है, वो जो 31 मार्च 22 है, दैट इज डेट ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, करेक्ट करेक्ट। नॉट और ये फाइनेंशियल ईयर। करेक्ट वो कैपिटल फाइनेंशियल ईयर एक्सपेंडिचर। नहीं है, वो फाइनेंशियल ईयर नहीं है सर, वो डेट ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है। राइट राइट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बता ही दिया। हाँ आपने हाँ। बोला सर टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आई एम टोल्ड ये जीएसटी के रिटर्न पर से भी नहीं मिलेगा। और जहाँ पर काफी सारे ट्रांजेक्शन है, थाउजेंड्स ऑफ लाइन ट्रांजेक्शन है, वहाँ थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा, बता। देखो सर, अब जहां तो आपको डिफिकल्टी ले तो एक्चुअल डिफिकल्टी को लिख के डिस्क्लेमर देना। राइट नॉट 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 कि आप कुछ भी लिख के डिस्क्लेमर दो। अगर एक्चुअल राइट। डिफिकल्टी है तो आप उसको डेमोस्ट्रेट करके डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। या आई एम टोल्ड नाउ, टैली वाले ने भी, किसी का प्रेजेंटेशन था कुछ दिन पहले, हाँ। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर निकाला है, जे वो टैली का में इंपोर्ट कर देन दे आर गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर। आप जो भी करें इसके वर्किंग पेपर्स बना के रखिए, अगर डिफिकल्टी है तो डिफिकल्टी का भी वर्किंग पेपर बना के रखिए। राइट राइट। 44 AD में सर आपने इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन कवर कर ही लिया है कि आप ज्यादा नहीं बता सकते हो, प्रॉफिट मीन्स 8% और 6% नहीं बता सकते हो। तो वहाँ क्वेश्चन हमेशा यही आता है, सेक्शन बोलता है प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सच हायर अमाउंट। तो लोगों का ये है कि आपने कैपिटलाइज ज्यादा किया तो भी आप 6% 8% दिखा सकते हो क्या। तो वहां पर भी व्यू है कि नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज द वर्डिंग इज और सच हायर। देखो सर, अभी अभी ये जो आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये मैं इस क्वेश्चन पे आई विल लाइक टू डेवलप और थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को कवर कर लेता हूँ। यस सर। अभी सर का जो क्वेश्चन है अशोक शर्मा जी का, वो बड़ा क्लियर ये है कि अगर कोई एसएससी है और 44 एडी में इनकम डिक्लेयर कर रहा है या 44 एडीए में डिक्लेयर कर रहा है, और उसने कैश फ्लो एक्चुअल में ज्यादा किया है, या उसकी जो उसकी इनकम 8% से ज्यादा है या 50% से ज्यादा है, क्या वो 50% दिखा के छूट जाए या 8% दिखा के छूट जाए, तो क्या डिपार्टमेंट उसका कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? यही क्वेश्चन है ना सर आपका? हाँ करेक्ट, वो 68 69 में भी एसेस कर सकते हैं। वो आपका डिपार्टमेंट आपको कुछ बिगाड़ सकता है कि नहीं बिगाड़ सकता? देखो सर, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि जो लोग 44 एडी में डिक्लेयर इनकम करते हैं या 44 एडी में इनकम डिक्लेयर करते हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग। ये इंटरप्रिटेशन गलत है। ठीक है सर। बट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं वो डिफाइन नहीं किए गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितनी होती हैं वो कहीं डिफाइंड नहीं है। अगर आपने एक पीस ऑफ पेपर पे अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के रखी है, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। आपने सेल की पट्टी बना के रखी है, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। आपने एक सिर्फ अपना कैश का एक कागज डायरी बना के रखी है, वो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। गॉट माई पॉइंट? तो बुक्स या ऑफ अकाउंट्स का कोई पैरामीटर नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं। आपने सिंगल एंट्री, हम तो बचपन से पढ़ते हैं सिंगल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंगल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अगर आप लिखते हैं तो वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट डजंट ऑलवेज मीन कि डबल एंट्री मेंटेन करोगे, टैली पे मेंटेन करोगे, जनरल एंट्री पास करोगे तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी। ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक छोटी डायरी से लेके, एक पर्ची से लेके और टू द कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कंपोनेंट है। तो 44AA की जब रिक्वायरमेंट है, वहां पर 5 सिचुएशन दिए कि प्रोफेशन में 1.5 लाख रुपए की इनकम स्पेसिफाइड प्रोफेशन की, बाकी आपकी 1,20,000 की या 2.5 लाख रुपए की या 25 लाख की या 10 लाख की, जब आपकी सेल एक्सीड होगी तब आपको टैक्स ऑडिट, तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। अब वहां पर उसने ये नहीं लिखा कि आपको कितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। उसने लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज वुड इनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर इनकम। गॉट माय पॉइंट? अब 44AD में आपको अपनी ग्रॉस रिसीप्ट तो डेमोस्ट्रेट करनी ही पड़ेगी ना सर। यस। अगर ऐसे आपने कहा कि मेरी सेल 60 लाख रुपए है या मेरी प्रोफेशनल सीट 60 लाख रुपए है, तो आपको 60 लाख का हिसाब तो देना पड़ेगा ना। वाई दिस इज यस। नॉट 70 लाख एंड वाई दिस इज नॉट 50 लाख, ये हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो इतने बुक्स ऑफ या अकाउंट आपको देने ही देने पड़ेंगे। गॉट माय पॉइंट? या और जब भी आप बिजनेस इनकम ड्राइव करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे आपका साल का फंड फ्लो नहीं मांग सकता कि आप कहते हो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, मैंने एक्सपेंडिचर का हिसाब नहीं रखा। डजंट मैटर, आप मत दीजिए मुझे एक्सपेंडिचर का हिसाब। आप मुझे अपना फंड फ्लो तो बताएंगे कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस में कितनी कैपिटल थी और क्लोजिंग बैलेंस में कितनी कैपिटल है। करेक्ट। आपको अपना फंड फ्लो तो बताना पड़ेगा मुझे, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल एसेट परचेज की
और उस कैपिटल एसेट को परचेस करने में आप 44AD से फंड फ्लो तो क्लेम कर रहे हो 50%, इनकम आप डिक्लेयर कर रहे हो 8%, एंड यू आर नॉट एबल टू प्रूव कि वो 42% की मेरी और लाइबिलिटी है जो मैं नेक्स्ट ईयर में पे करूंगा, तो आपके ऊपर सेक्शन 69 या सेक्शन 68 की एडिशन होगी कि नहीं होगी? होंगे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, करेक्ट। ठीक है सर, तो वहां पर जो वर्डिंग है वो बड़ी क्लियर है, 8% और हायर अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय द एसएससी। जब मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अपनी सबमिट की और अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाके बोलता हूँ कि सब मैंने 8% नहीं कमाया, मैंने तो 15% कमाया, मैंने 15% का कैश फ्लो ले लिया, तब मेरी इनकम 15% लगेगी सर, 8% लग नहीं सकती सर। अभी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ट्राइब्यूनल के जजमेंट आ गए। देखो, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आई ऑलवेज प्रोसीड विद माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। अब देखिए सर, कोर्ट के जजमेंट्स है ना, आज एक जजमेंट आपके फेवर में आता है, दूसरी कोर्ट का जजमेंट आपके अगेंस्ट आता है, तीसरी कोर्ट कुछ और जजमेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट ने 148 का पूरा मैस क्रिएट कर दिया। गॉट मी पॉइंट? तो ये जो लॉ की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, हाउ यू अंडरस्टैंड द लॉ और हाउ यू अप्लाई योर लॉ। अगर हम रोज कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे तो कुछ जजमेंट हमारे फेवर में आ गए हैं कि 44AD में आप असेसिंग ऑफिसर आपसे हिसाब नहीं मांग सकता है, तो बेस्ड अपॉन दैट जजमेंट लोगों ने ये व्यू बना लिया कि कोई जरूरत नहीं है साहब, आप डिक्लेयर करो। अब मैं ये नहीं कहता कि आप डिक्लेयर मत करो, बट यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। करेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं और आपको हायर अमाउंट पे टैक्स लग सकता है सर, नोबडी विल बी एबल टू सेव यू। राइट। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने 44 के बारे में बोला कि ये कंप्यूटेशन से रिलेटेड नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो लोगों का कहना है कि मैं नई रिपोर्ट करूं तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? ये डिस्क्लेमर तो आपको देना पड़ेगा, यू आर आस्क्ड टू रिपोर्ट, तो आपको या तो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा या फिगर देनी पड़ेगी। हाँ, तो डिस्क्लेमर दे देंगे, अदरवाइज हाँ, आप देखिए असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है अंडर द लॉ, वो अपना मांग लेगा, आप अप्रोप्रिएट डिस्क्लेमर दीजिए कि क्यों नहीं दे पा रहे आप। करेक्ट, ठीक है ना, आप अपने डिस्क्लेमर दे दीजिए। राइट, थैंक यू। ठीक है जी, अब ये बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस टर्नओवर इज ₹60 लाख, डू आई नीड टू ऑडिट फॉर लॉस? सर, मैंने आपको कहा कि जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आई एम नॉट गोइंग बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर स्पीकर्स जो लोग बोल रहे हैं, मेरी राय में F&O की एक्टिविटी को बिजनेस इनकम दिखाना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है सर, अगर आप उसको बिजनेस एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है, तो आप 44AD में जा सकते हैं या 44AB में 1 करोड़ की लिमिट में जा सकते हैं या 10 करोड़ की लिमिट में जा सकते हैं, जो भी लिमिट आपके ऊपर अप्लाई होगी। तो अगर आप F&A को यू चूज टू डिक्लेयर दिस एज पार्ट ऑफ योर बिजनेस इनकम, तो उसकी टर्नओवर को कंप्यूट करने का एक सिस्टम दिया है कि आप जो डेबिट के फ्यूचर हैं जिसमें लॉस हुआ है वो आप एक तरफ रख लीजिए, जो इनकम के हैं उनको एक तरफ रख लीजिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। और फिर F&O में क्योंकि कोई कैश की ट्रांजेक्शन तो होती नहीं, तो मोस्ट लाइकली इसमें आपकी जो टैक्स ऑडिट की लिमिट होगी वो आपकी 10 करोड़ रुपए होगी। ठीक है सर, और जो छोटा SSC होगा उसके केस में आप 44AD में भी 2 करोड़ रुपए तक F&O को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, और उसके बाद अगर आपको ऑडिट करना हो तो आप ऑडिट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर है, 44AD में जाके भी कर सकते हो। F&O टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ हैविंग लॉस, वेदर सूटेबल ऑडिट वेदर ऑडिट रिक्वायर्ड। 10 करोड़ से ऊपर है तो भैया वो तो ऑडिट होगा ही ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है ना, मैंने बता दिया आपको टर्नओवर कैसे कंप्यूट करते हैं। If turnover is more than 1 crore but less than 2 crore from future and option and books of accounts are maintained, I have loss, then I do need to audit under section 44AB, read with section 44AD। देखो अर्पित गर्ग जी, जो 44AD का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा विचित्र है, ये 44ADA जैसा नहीं है। यहाँ पर ये कहता है कि असेसमेंट ईयर 17-18 में जब ये 44AD आया, आपने 44AD में इनकम किसी साल में डिक्लेयर की, उससे अगले साल में फिर आपने 44AD में इनकम डिक्लेयर नहीं की, ओनली देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, राइट। पहले साल में ही यदि मैं अपनी इनकम 44AD में डिक्लेयर नहीं करता 8% या 6% 17-18 असेसमेंट ईयर के बाद, ठीक है, और ऑडिट नहीं कराता, तो मेरे ऊपर ऑडिट लागू नहीं होता। ऑडिट लागू तब होता है जब मैं एक बार 44AD में डिक्लेयर कर दूं, उसके बाद 44AD से ऑप्ट आउट कर लूं, तब मेरे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है 44AD के लिए। ठीक है सर, तो ये आप 44AD के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और अपने केस में, क्योंकि F&O में
10 करोड़ की लिमिट लगेगी, क्योंकि F&O की सारी ट्रांजेक्शन चेक से होती है, कोई कैश में तो होती नहीं है, कोई एक्सेप्शनल हो तो बात अलग है। तो वहां पर लिमिट जो हो जाएगी टैक्स ऑडिट की वो 10 करोड़ रुपए हो जाएगी। ठीक है सर। और अगर 2 करोड़ से नीचे पे आप टर्नओवर पे जाना चाहते हो तो 44AD अगर आपके ऊपर अप्लाई होता है तो आप 44AD में जाकर डिक्लेयर कर सकते हो। आपने पहले कभी 44AD में डिक्लेयर की और अब आपकी 2 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है और 44AD में नहीं जाना चाहते तो आपको ऑडिट करना है। ठीक है सर। Purchases from composition dealers are accounted for similar to purchases from unregistered dealer. How to bifurcate? सर ये तो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बताएगा सारांश जी, ये तो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आपकी इंफॉर्मेशन कैसे निकलेगी, अगर नहीं निकाल पा रहे तो डिक्लेरेशन दे दीजिए। क्लॉज नंबर 44 हो गया। फिर ये देवेंद्र खुराना जी, while reaching 50 lakh remuneration from partnership is taken। ये देवेंद्र खुराना जी का जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा, जो जितना मैं समझ पाया हूँ, देवेंद्र खुराना जी को स्क्रीन पे ले लीजिएगा, अगर मैं क्वेश्चन इनका गलत नहीं समझ पाया हूँ तो इनको स्क्रीन पे ले लीजिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है और सबके बेनिफिट के लिए काम पे आ जाएगा। देखिए तो खाना साहब हैंड रेज कर दें तो मैं इनको ले लूंगा। देवेंद्र खुराना जी अपना हैंड रेज कर दो, आप स्क्रीन पे आ जाओ, आपको आंख में आंख डाल के क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं। इनका क्वेश्चन है सर, पार्टनरशिप फर्म ने जब रेमुनरेशन दिया पार्टनर को, वो दिया 70 लाख रुपए। ठीक है, पार्टनर के हाथ में आए 70 लाख रुपए, लेकिन 40B में जो अलाउएबल है वो है मान लिया 60 लाख रुपए। एम आई राइट खुराना जी? आपका यही क्वेश्चन है ना? यस और नो लिख दो क्वेश्चन आंसर में, आगे खुराना जी शायद। तो आपका क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप फर्म ने जब रेमुनरेशन दिया पार्टनर को, उन्होंने रेमुनरेशन दिया 70 लाख रुपए जी। और पार्टनरशिप फर्म को जो 40B में अलाउएबल है वो अलाउएबल है 60 लाख रुपए, और 10 लाख जी। रुपए पार्टनरशिप फर्म को डिसअलाउ हो गया। हाँ जी। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना आपका? जी जी। अब आपका क्वेश्चन है कि पार्टनर के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, यही क्वेश्चन है सर। सर पार्टनर के हाथ में जितना रेमुनरेशन फर्म को अलाउ हुआ है सिर्फ वही टैक्सेबल होगा सेक्शन 28 में। ठीक है सर, जो 10 लाख रुपए डिसअलाउ होगा वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। वो जो 10 लाख रुपए है वो पार्टनर के हाथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट है, विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑफ इनकम टैक्स। That is okay, sir. That is okay. My question is that by reaching the limit 50 lakhs, तो जो मेरे 50 लाख से ऊपर मेरे को ग्रॉस रिसीट मेरे को 60 लाख मिली है उसमें। सर मैंने आपको शुरुआत में लेक्चर में, शायद आपने लेट ज्वाइन किया होगा, शुरुआत में मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप सबके साथ शेयर किया था। ठीक है सर, तो उस बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने कहा है कि जो है जो रेमुनरेशन और इंटरेस्ट मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, वो आपकी टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट की लिमिट में काउंट नहीं होगा। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, तो उसके बेस पे आपको टैक्स ऑडिट नहीं करना है। ठीक है। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, और कोई क्वेश्चन आ गया? समित सौरभ, गुड्स डैमेज इन इन्वेंटरीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हाउ मेनी वी फिल्ड दिस डैमेज गुड्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ITR फर्म। अरे डैमेज गुड्स तो अगर हो गई है तो भैया उसका वैल्यूएशन हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अकाउंट फॉर हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सुमित जी। सुमित सौरभ साहब, अगर आपके किसी SSC की अगर गुड्स डैमेज हो गई है और स्टॉक को जो वैल्यूएशन करते हैं हम, वो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो जो डैमेज गुड्स हैं जब आप उनको सेल प्राइस पे, रियलाइजेशन वैल्यू पे जब आप वैल्यू करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर हो जाएगा, और उसकी कहीं से कोई सेपरेट रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट स्मिथ सौरभ जी नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो आपका तो इसमें पूछ सकते हैं। अब राजेश भाई चाह रहे थे कि 148 के ऊपर थोड़ा सा कवर कर लें, तो 148 की आप सब लोगों की लिमिट आ रही होगी रिटर्न भरने की, बहुत से लोगों ने भर दी होगी और बहुत से लोगों को भरनी होगी। ठीक है सर, तो अलग अलग करके समझ लेते हैं। असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15, 15-16। ठीक है सर, ये जो 3 साल हैं, असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, इन दोनों की प्रोसीडिंग नए लॉ में टाइम बार हो चुकी है, और जो CBDT का सर्कुलर नंबर 1 है, इंस्ट्रक्शंस नंबर 1 है, वो इलीगल है। ठीक है सर, अब क्वेश्चन क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये मैटर फाइल हुआ, तो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मनमोहन का ये कहना था, बिकॉज द एंटायर मैस इज क्रिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सो वी डू नॉट वांट टू इंडल्ज इन दिस मैटर। तो इस इशू पे अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यू गो एंड फाइल रिट पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है सर,
तो हमारे ऑफिस से एक रिट पिटिशन हमने फाइल की थी असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए। ठीक है सर, आभा गुप्ता नाम है, आप सर्च मारेंगे मिल जाए, जजमेंट मिल जाएगा। तो वो रिट पिटिशन हमने विद ऑल ओवर कंटेंशंस ओपन हमने उसको रिट पिटिशन को विड्रॉ कर लिया था, एंड द दिल्ली हाई कोर्ट पास एन ऑर्डर कि जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 148 असेसिंग ऑफिसर को सारी की सारी हमारी कंटेंशन को डील करना पड़ेगा। ठीक है सर। लेकिन अभी कल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में व्हाइल डीलिंग विद असेसमेंट ईयर 14-15 इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया है उस पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है राजीव जी 13-14 है, सॉरी टू इंटरप्ट। 13-14 13-14। तो ये उस पर्टिकुलर केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फेवरेबल डिसीजन दे दिया है। तो लेकिन अभी क्या है कि अभी क्योंकि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट खासतौर से रिट पिटिशन 13-14, 14-15 और 15-16 की इस लिमिटेशन के इशू पर इंटरटेन दिल्ली हाई कोर्ट अभी नहीं कर रही है। ठीक है, अभी तक जो रिट पिटिशन फाइल हुई है या तो विड्रॉ हुई है या फिर उन पे डेट लगी है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज इनटू दिस इशू। ठीक है सर। दिल्ली हाई कोर्ट में 25 सितंबर की डेट है। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो पिटिशन जस्टिस मनमोहन हैज फोर्स टू विड्रॉ, राइट, और जो 25 सितंबर की डेट है वो असेसमेंट ईयर 13-14 14-15 के लिए किसी के लिए है। जो 15-16 वाली है उनको जस्टिस मनमोहन हैज फोर्स टू विड्रॉ कि आप अपनी सारी लीगल कंटेंशन ओपन रख लो, दोबारा आ जाना, अभी के लिए आप असेसमेंट कराओ, अभी के लिए आप असेसमेंट प्रोसीडिंग में जाके पार्टिसिपेट करो और सारी कंटेंशन वहां पे जाके रेज करो। ठीक है सर। तो अभी क्या है कि इन 3 सालों के लिए, खासतौर से इन 3 सालों के लिए आपको मैं 3 या 4 लीगल ग्राउंड बताता हूं जो आपको हर केस में लेनी है। हर केस में आपको ऑब्जेक्शन फाइल करनी है। आमतौर पर 148 की प्रोसीडिंग में ऑब्जेक्शन फाइल करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, लेकिन डिपार्टमेंट ने अब की बार एक चूक कर दी, और इस चूक करने में उन्होंने क्या किया आप नोट कर लीजिए। जितने भी 148 के नोटिस आए हैं वो मैनुअली इशू हुए हैं, उनके ऊपर डिन नंबर मेंशन नहीं है। ठीक है सर। और सब्सिक्वेंटली एक इंटीमेशन जनरेट की गई है, उस इंटीमेशन में उस ऑर्डर का डिन नंबर बना के भेजा है। तो जब आप अपने पोर्टल पे जाओगे तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको। एक मिलेगा वो इंटीमेशन लेटर, और दूसरा मिलेगा वो आपको नोटिस अंडर सेक्शन 148। जो नोटिस अंडर सेक्शन 148 है उसकी कंप्लायंस में आपको रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है सर। और जो आपका डिन का इंटीमेशन है उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हो। तो मेरा आपको सबको सिंसियर एडवाइस है, आप वहां पर जाकर अपनी ऑब्जेक्शन फाइल कर दो, दैट द एसएससी विल बी फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर प्रोटेस्ट विदाउट प्रेजुडिस टू अवर लीगल कंटेंशन रेमेडीज एंड रेमेडीज अवेलेबल अंडर लॉ। और वो जो ऑब्जेक्शन में आप अपनी सारी लीगल ग्राउंड्स लिख डालेंगे। ठीक है सर। पहली लीगल ग्राउंड क्या हो सकती है आपकी कि आपके नोटिस अंडर सेक्शन 148 पर डिन नंबर मेंशन्ड नहीं है, एंड बिकॉज दिस इज नॉट इश्यूड in accordance with circular number 19/2019, सीबीडीटी का सर्कुलर है, उसने कहा है कि बिना डिन के जब भी कोई नोटिस इशू करेंगे तो उस डिन की बॉडी में आपको लिखना पड़ेगा कि ये आपने विदाउट डिन क्यों किया। तो उस किसी भी नोटिस में असेसिंग ऑफिसर ने लिखा नहीं है कि उसने ये नोटिस विदाउट डिन क्यों इशू किया है। ठीक है सर। तो ये पहला आपका लीगल कंटेंशन बनेगा, बिकॉज द लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज इश्यूड विदाउट मेंशनिंग डिन देयरइन इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। और फिर दूसरी आपको ग्राउंड लेनी पड़ेगी जो इंटीमेशन है व्हिच इज इश्यूड सेपरेटली, इट कुड नॉट हैव रेगुलराइज्ड दिस लैप्स ऑफ नॉट मेंशनिंग डिन इन द बॉडी ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। ठीक है सर। एक और लीगल ग्राउंड है, अब लॉ कैसे सेटल होगा, बट दीज आर ऑल वेरी गुड लीगल ग्राउंड्स। सेक्शन 151A 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो गया, और सेक्शन 151A कहता है दैट नोटिस अंडर सेक्शन 148 हैज टू बी इश्यूड इन फेसलेस मैनर। ठीक है सर। आपने सारे के सारे नोटिस ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने इशू किए हैं। जब आपका लॉ चेंज हो गया और 148 का नोटिस आपका फेसलेस मैनर में होना है, तो आपने ये नोटिस मैनुअली क्यों इशू किया। और थर्ड कंटेंशन आपकी आएगी कि आपके जो लिमिटेशन से टाइम बार्ड है सारे नोटिस। ठीक है सर। ये 3-4 तो आपकी लीगल ग्राउंड्स हो गई जो आपको लेनी है। ऑब्जेक्शन फाइल करनी है, और ऑब्जेक्शन साथ में आप ईमेल से भी फाइल करें। असेसिंग ऑफिसर की ईमेल आईडी आपके प्रोफाइल के अंदर है,
ये ऑब्जेक्शन साथ में ईमेल पे भी फाइल करें। और जो आपके 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास करने में अभी डिपार्टमेंट ने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी, इंस्ट्रक्शंस में कहा कि वर्चुअल हियरिंग भी होनी चाहिए, इंक्वायरी भी करनी चाहिए, सारे काम करने चाहिए। हमारे 148AD में क्या किया? कुछ नहीं किया, नथिंग हैज बीन डन। आपको ना वर्चुअल हियरिंग दी, ना फिजिकल हियरिंग दी, ना आपको बुलाया, ना आपको असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी करी। तो वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी हो गया, और जो CBDT की खुद की इंस्ट्रक्शंस है कि 148A की प्रोसीडिंग में असेसिंग ऑफिसर को कैसे डील करना, उसका वायलेशन हो गया। ठीक है सर। और उसके अलावा जो आपकी मेरिट की कंटेंशन होगी, आपके सबमिशन को कंसिडर नहीं किया, या जो मटेरियल था उसको एग्जामिन नहीं किया, या जो इन्फॉर्मेशन है डज नॉट पर्टेन्स टू यू। क्योंकि हुआ क्या है कि डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर कर लिए हैं, और जो हम सोच रहे थे GK एंड ड्राइव से कुछ बेटर नज़ारा देखने को मिलेगा, तो वी हैव रीच टू द वर्स्ट सिचुएशन। हम बहुत खराब सिचुएशन में पहुंचे हैं, और ये बहुत इमेंस लिटिगेशन 148 का हमारे सामने आएगा। तो ये जितने भी आपको 148 की रिटर्न फाइल करनी है, आप अपनी ऑब्जेक्शन जरूर तुरंत फाइल कर दें, जिससे इन फ्यूचर जब भी जो लिटिगेशन होगा, क्योंकि बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट फॉर असेसमेंट ईयर 13, 14 एंड 14, 15 वी आर कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस्ड। 15, 16 की विड्रॉ हुई है पिटिशन अभी। ठीक है सर। 6, 14, 13, 14 एंड 14, 15 दिल्ली हाई कोर्ट में अभी ये मैटर्स आएंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से ऑर्डर फेवरेबल में आ गया है, बाकी हाई कोर्ट्स का देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये फियर्स लिटिगेशन है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और इसको लड़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। सर एक इन्फॉर्मेशन था। जी सर। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट है SS कोमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, आज ही आया है। आज ही आया है 14, 15 का, कपिल जी ने आर्ग्यू किया है, उसमें भी स्टे दिया गया है। वेरी गुड। आज ही आया ये। यस सर, यस सर। नहीं, ये सारे लीगल इशू हैं, और सारे पर्टेन करेंगे, और ये सारी थोड़ी सी लीगल लड़ाई थोड़ी सी लंबी जरूर लड़नी पड़ेगी। राजीव जी, मैंने तो अपने सारे जिनमें 148 आए हैं उनको बोल दिया है कि भैया ये लॉन्ग फाइट के लिए रेडी रहो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये मत सोचो कि असेसमेंट तुम्हारे फेवर में हो जाएगी, कमिश्नर तक तो आपके अगेंस्ट ही होने वाली नहीं, बिल्कुल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो आपका 15, 16 का जो मैटर है, इट वाज आर्ग्यूड बाय माय सन। तो मणिभद्र जैन, तो उसने जब आर्ग्यू किया तो दिल्ली जस्टिस मनमोहन का सिंपल बस, क्योंकि उस समय 2 ही पिटीशन लिस्टेड थी उस दिन, एक हमारी पिटीशन लिस्टेड थी, और एक दिल्ली की एक बड़ी लॉ फॉर्म है उनकी पिटीशन लिस्टेड थी। उनकी असेसमेंट ईयर 13-14 थी, हमारी 15-16 थी। बोथ वर हैविंग द कॉमन इश्यूज। ठीक है। तो उस दिन उनका तो सीनियर काउंसिल अवेलेबल नहीं था, तो उनकी जिसको आपने बताया ना 25 सितंबर की डेट है, तो उनका वो एडजॉर्न हो गया। और हमने क्योंकि वो मैटर आर्ग्यू किया था, तो जस्टिस मनमोहन का सीधा सिंपल कहता है कि आई एम नॉट गोइंग इनटू मेरिट्स ऑफ योर आर्गुमेंट एट ऑल। मैं जाना ही नहीं चाहता इसमें, बिकॉज दिस इंटायर मैसेज क्रिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, लेट सुप्रीम कोर्ट क्लियर इट। क्योंकि क्या है कि मुझे जो उनके रुख से लगा कि भाई, बिकॉज उन्होंने इतनी लंबी हियरिंग दी, इतनी लंबी हियरिंग देने के बाद एक इतना स्पीकिंग ऑर्डर उन्होंने पास किया, और उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि भाई व्हाई शुड बी इंडल्ज इनटू दिस। तो ऐसा कुछ मैटर है, लेकिन लेट अस सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड इन नियर फ्यूचर टू कम। लेकिन ये सारा लिटिगेशन हमें अच्छे से बाय टूथ एंड नेल करना है। ठीक है सर। ठीक है राजेश भाई, आज को कंक्लूड करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। माय थैंक्स टू ऑल पैनलिस्ट एंड ऑल द ऑडियंस हु हैव जॉइंड दिस लाइव सेमिनार। और मुझे तो सच में, मैं इनसे राजेश जी से कह रहा था कि मेरे पास तो इतना मैटर नहीं है कि मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा इस पे बोल पाऊंगा, और आप लोग ऑलरेडी एक सेमिनार कर चुके हो, तो लेकिन फिर भी नहीं, मगर राजीव जी एक सेकंड ओपिनियन सुनने में ना कुछ और क्लैरिटी आ जाती है। देखिए, आपने ये शुरू में यही कहा था कि दिस इज माय थिंकिंग, दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग, एंड इट हैज गिवन अस ए बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू लुक एट द इशू इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव आल्सो। जी जी, थैंक यू चलो, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Jan Saab, for a wonderful deliberation on the subject. You have very well explained the clause 30C, 44, and then 44AD and 44ADA. And on my request, you have also thrown some light on the present position of notices issued 148. You have very well told us that we must have 3 conditions, 3 objections in each and our letter, so that will be benefited later on. So once again, sir, thank you, and also welcome Sumit Saurabh ji and Anand Duaji, who lately joined us, Atul Puri also.
थैंक यू जैन साहब। हम लोग राजेश जी को धन्यवाद देते हैं, बेस्ट सर लाते हैं सर। अभी परसों हमने फिर रख रखा है, कपिल जी आएंगे और ब्लैक मनी में अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसको एनालाइज करेंगे और बाकी का सारा ब्लैक मनी भी पढ़ेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज जॉइन अस डे आफ्टर टुमारो सेम टाइम 5 PM। थैंक यू। आपने डाल दिया उस पे? मैं डालूंगा आज के बाद डालूंगा ना। कंफ्यूजन ना हो जाए ना। कहाँ पर ये भी बता दो ना, ब्लैक मनी है कहाँ पर? ये भी कपिल जी बताएंगे सर। ठीक है सर, यही तो सरकार भी पूछ रही है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।